Audio video clear है? Please, someone will confirm. Yes. Yes. Yes, yes. Yes. Cool. Perfect. So yeah, thank you so much for joining on the weekend. And yeah, so hi everyone. Good afternoon. Namaste. So today is our like first session. So before that, कई लोगों से मैं already मेरी बात हुई है या मैं connect किया, but कुछ लोग first time है यहाँ पे. So let me quickly give a brief overview of कि what is this about and what is expected out of this session or the whole overall batch. तो अगर मैं जैसे आसान भाषा में बोलूँ तो we need to clear our iOS interview rounds. So basically we are targeting the second and third round. Normally in most of the product based companies you have one DSA round and then you have a like one or two iOS rounds specific basic and advanced stuff of Swift and iOS, and you have the system design round. So we are targeting mainly iOS specific rounds in the entire this batch. हम लोग वो सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं whichever is frequently asked or important or critical or whatever like from the interview perspective. So हम लोग वो सारे टॉपिक्स लेंगे and will actually go in the deep dive and we'll take all the questions which are related to specific those topics and we'll go through the thorough understanding or the fundamental understanding of all those topics. I would recommend agar if you can on your cameras also it would be great if you can, else no worries. Yeah. तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं फॉर दैट क्लियरिंग दोज आईएएस इंटरव्यू राउंड्स, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो, डजंट मैटर. एंड डीएसए पे भी मैं आऊंगा उस पर, डीएसए पे भी हम लोग काम करेंगे. बट ये अदर थिंग इज हम लोग डीएसए नहीं पढ़ाएंगे ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट अ डीएसए बैच. अगर डीएसए पढ़ाने बैठ गए तो डीएसए का ही बैच चल जाएगा 3-4 months का. सो द पॉइंट इज की आज मैं जस्ट क्विकली बता दूं जिन लोगों को नहीं पता. सो ओके प्रवीण, यू डोंट नो हिंदी, ओके, but still actually intentionally we won't make this in Hindi, but cool, no problem. We'll repeat in English and Hindi both, so no issues. So the point is the DSA, if you know कि whenever your experience get increased, जितना आपका experience बढ़ता जाता है in iOS, so your DSA difficulty level will get lower. Okay, so basically when you are a pure fresher, your DSA difficulty level is more high in the companies in that DSA round because companies don't have any specific, you can say, a point or a topic or any skill where they can judge you or they can filter you. Okay, क्योंकि freshers ने कुछ भी as such अभी उनका experience नहीं है, so they can't judge you on any of the skill. तो basically वो लोग आपको पूरा DSA पे जज करते हैं. That's why the difficulty level is very high. एंड उसमें आपका मतलब यू शुड बी go through medium and hard level lead code and hacker and questions. But as far as the experienced software engineers are concerned, तो ये difficulty level कम होता जाता है because now they don't want to judge entirely on DSA. Now basically उनको एक basic filter करना है. So basic filter is like your basic and medium level of DSA questions. So हम लोग उन्हीं DSA को हमें target करना है. We need to make sure कि we should prepare for those kind of DSA rounds and at least we can clear, I think I can say like 70 to 80% of the companies from those kind of set of questions or algorithms and topics of DSA. तो हम लोग उन topics का will provide you the best of the best content in the market and also will guide you and mentor you on that part, but we are not going to teach you the DSA algorithm or DSA particular like how linked list works or how tree traversal works, right? You can go through that content, you can understand it, and then we'll give you the questions and we'll go through some practice sessions and follow-ups and everything like that, so that your DSA preparation also could be in the background आपका वो भी preparation हो जाए, something like that. So yeah, that is about DSA. But other than that, our main concern is about the iOS rounds, Swift, iOS, advanced, basic, whatever it is. Okay, and system design, which includes everything like about design patterns, architecture patterns, and everything in between. जो भी है. Okay, I hope you clear with that. And this batch is expected to be around 2.5 to 3 months minimum, depends. And we are expecting weekly 4 to 5 sessions per week. 2-3 days का gap रहेगा because if we are going to build one project also in this particular batch. Yeah, just a minute, let me complete. So the point is कि whatever you are learning those topics here,
will going to practice or hands-on those topics, from building one entire project from scratch. And the code we are going to do is like a pure product based companies, like we do in our day-to-day companies work. And your code obviously reviewed by us also, like the senior software engineers, which are your mentors here, and also you also review your code, like your colleagues and your peers here. So yeah, so basically you will learn a lot in that process. And because मैंने देखा है most मतलब not it's not about everyone, but few of the people haven't worked in a good companies yet so far, so they will learn how code should be in the good companies. Okay, so that is also the concern, that you will learn through all this journey and through building that project. And we are going to build that project in SwiftUI intentionally, because as far as you know, everyone filled that form. So most of the people haven't worked in SwiftUI, and now companies are demanding SwiftUI. Depends company to company, but still, now SwiftUI is like a more considerable. Or even though I feel ki still the market is like 60-40, I can say, or 70-30. Like more UI kits still there in the market in the existing projects, but the new projects are starting in SwiftUI, or some companies have started migrating into SwiftUI. So that's why it's a bit important. So we'll focus more on SwiftUI and less on UI kit. But हम लोग UI kit के भी वो topics लेंगे. We'll cover those UI kit topics which are important from interview perspective. So very basic example, if I give you, like content hugging and compression resistance property. It's a very basic, maybe most of the people already know, but still we will take this minor topic or this minor question in our batches. So something like that. Okay. So yeah, but the main important of, if I highlight the thing ki majorly we are focusing on multi-threading se leke SwiftUI combine, and design pattern, architecture patterns, and everything which is again important. So you will get the list today. I will mostly expected by yesterday only, but weren't able to complete it. So today I will share you the whole list of topics which we are targeting, and on that document you can also comment or share your thoughts on that. Ki if you feel कि इसमें कोई topic miss है, which you think is really important, or you also face that particular question or topic in your recently interviews, then you can suggest that topic and we will consider that as well. Okay, so this is about this whole thing, and fees we decided as a 55,000 rupees for this entire batch. And the first three sessions are like free, and we're going to cover in first three sessions like multi-threading, GCD, dispatch queue, operation queue, and async await actors. This whole umbrella thing which comes under concurrency and multi-threading in the iOS. हाँ, as far as जो लोग मुझे नहीं जानते, so let me quickly introduce myself. So my name is Kushal. I'm working right now in Abu Dhabi, in UAE, for a banking client, ADIB Bank, and I have total experience around 8.5 to 9 years. And I'm also the founder of Intel Labs. It's a tech community initiative which has started in 2020, around first week of COVID. And there also, when we in 2021 we started the iOS batches for freshers and advanced or experienced people both. So then we taken a break of 3 to 4 years because of some personal reasons. Then now again we are starting these new batches. So that's a brief about me. And you can also go through my LinkedIn profile. You will get a whole overlook which companies I worked on so far. So yeah. So I hope all good. We can start. Anyone has any questions so far or anything? So Namita, you raised hand. Anything you want to ask? No, Kaushal, I just wanted to clear that you are including Shift UI also. Yeah, definitely. Swift is a major highlight. So that is, Yeah. yes, yes. Cool. Thank you. So let's start with very basic. मैं चाहूँगा कि we'll start with very basic of कि कि ये picture में आया कैसे, like how whole things get started. What is concurrency? What is parallelism? What is multi-threading? Okay. So we'll give you a very basic thing कि you go in the very like history of computers. Okay. So basically it start from OS. Okay. So even though we are doing iOS, it's basically an OS, right? It's an iPhone operating system. तो अभी जैसे आप even you go in Windows or Linux or Mac or whatever OS you, आपको मैं ये बता दूं, I've done a one design of OS codes where we learned all the algorithms which actually your OS uses, and we actually, the batch is about Unix, but the thing is
your Windows, Mac OS, even iOS, Android, all are inspired by Unix. So the fundamentals are same. And the thing is, OS basically decides how to do like scheduling and all, like multi-threading, and how to use the resources which are available. And from resources, I mean the cores which are available, or the processes which are available where you can run your code. And basically हम जो भी code करते हैं, it's converted into your, you can say converted in assembly language and then converted into binary code, and then it actually get executed. और उसमें अभी हम लोग will use, normally we use variables, right? अभी आप लोग वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हो, बट द थिंग इज सीपीयू को कह लो या मशीन को, दे डोंट नो व्हाट इज वेरिएबल, बट उनकी भाषा में है रजिस्टर्स. ओके, सो रजिस्टर्स बेसिकली होल्ड योर वैल्यूज और होल्ड योर कंटेक्स्ट, बेसिकली जिसे हम कंटेक्स्ट स्विचिंग के कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ चीज. सो वेन एवर यू डू मल्टी थ्रेडिंग, एंड अभी आपको पता है क्योंकि मुझे एक टास्क करना है एंड आई एम ऑल्सो वांट टू डू वन मोर टास्क. और अगेन इट्स नॉट अबाउट कि जब हम अपना ऐप चला रहे हैं तो इट्स ओनली वन ऐप इज रनिंग इन द एंटायर आईफोन, राइट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? अभी when suppose our app name is ABC, so ABC app is also running and some other apps are also running parallelly, right? Your calling app, maybe your WhatsApp app, YouTube app, whatever, Google Meet, this app, right? Whatever. So the point is ki just now a second. So the point is ki other apps also working, right, parallelly. तो basically now iOS का जो प्रोसेसर है, they need to decide कि किसको कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, which particular task will get execute first and how to switch in between. तो यहाँ से ये concept actually in picture comes कि हम लोग को अगर ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है, या फिर अभी करंटली OS कैसे इस चीज को हैंडल करता है, इसी का पूरा चीज है ये मल्टी थ्रेडिंग, GCD, NS ऑपरेशन, और ऑपरेशन की और आगे जो भी है सिंक अवे, टास्क ग्रुप, एवरीथिंग, टारगेट क्यूज. तो इस बात को समझ पा रहे? तो इसका फंडामेंट ये है कि अभी मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दूं आपको. तो कॉन्करेंसी में कैसा हो रहा है कि एग्जांपल के लिए आप ये ले सकते हो कि दो क्यूज है, ठीक है, दो क्यू चल रही है पैरेलली. जैसे आप मूवी टिकट खरीदने जाते हो, यू गो फॉर अ मूवी टिकट इन एनी ऑफ द सिनेमा थिएटर, सो टू क्यूज आर देयर बट द काउंटर इज ओनली वन. ओके, तो यहाँ पे कॉन्करेंसी वाला चीज है, दो क्यूज है बट एट ए टाइम काउंटर एक है. सो आइदर मतलब ऐसा दिख रहा होगा कि दोनों क्यू चल रही है एक साथ, बट एक्चुअल में एट ए टाइम एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है. एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब एक इंसान को वो डील कर रहा है एट ए टाइम, वन पर्सन एट ए टाइम, वन टिकट एट ए टाइम, राइट? एक साथ दो को टिकट नहीं बांट रहा हो, क्योंकि काउंटर एक ही है. अगर काउंटर दो हो जाएंगे तो आपके रिसोर्स बढ़ जाएंगे, आपका कोर बढ़ जाएगा. कोर मतलब अभी जैसे अभी हम लोग के करंटली मैक ओएस इज लाइक 8 कोर, ऑक्टा कोर, 12 कोर, हेक्सा, जो भी है, राइट? समझ लो मल्टी कोर्स हो गया अब चीजें. बट मैं सिंगल कोर के अभी कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ पहले. तो अगर मान लो कि सिंगल कोर ही है, देन अब आपके पास एक ही कोर है, एक ही रिसोर्स है, और एक ही ऐसा कह लो कि प्रोसेसर है जो एट ए टाइम एक ही चीज एग्जीक्यूट कर सकता है. देयर इज नो मल्टी कोर एज सच. तो फिर वहां पे अगेन आपको ये डिसाइड करना होगा कि पहले किस क्यू को मैं प्रायोरिटी दूं. तो यहाँ पे दो चीजें होती है नॉर्मली, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं बट हम दो पे बात करेंगे पहले, विच इज लाइक योर कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम स्लाइसिंग. तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में आप अगेन जैसे क्या होता है, जैसे रजिस्टर के बारे में हमने जो बात करी, तो रजिस्टर कंटेक्स्ट आपका स्टोर करके रखते हैं. तो जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप कोई प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट करो तो प्रोसेस ए की कंटेक्स्ट में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज उसके कंटेक्स्ट में है, वो चीज को वो होल्ड करता है और फिर वो प्रोसेस ए के कोड को एग्जीक्यूट करता है. देन व्हेन यू स्विच टू प्रोसेस बी और थ्रेड बी, यू कैन से, तो उस थ्रेड बी का जो प्रोसेस है और उसके प्रोसेस के जो कंटेक्स्ट में चीजें चल रही हैं, फिर वो उसके वेरिएबल्स के वैल्यूज को स्टोर करेगा और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा. इस तरीके से कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है अगर मैं एकदम कोर लेवल पे बात करूं या ओएस के लेवल पे. अब हम आते हैं टाइम स्लाइसिंग पे. टाइम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है? टाइम स्लाइसिंग में टाइम के ऊपर बेस पे होता है चीजें. तो हम उसको बता देते हैं ओएस को कि लाइक जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको कि इमेज डाउनलोड करनी है और दो थ्रेड चल रही है, दो टास्क चल रहे हैं. एक में इमेज डाउनलोड हो रही है, इट विल टेक्स अराउंड 7 to 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम. एक में कुछ छोटा सा टास्क चल रहा है जो कि 2 सेकंड में हो जाएगा. तो अब ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अगर टाइम बेसिस पे स्विच करना है तो यू कैन मतलब इंटेंशनली यू कैन मार्क दिस पर्टिकुलर टाइम आउट कि ओके इतने टाइम के लिए रन प्रोसेस ए और थ्रेड ए और एग्जीक्यूशन ब्लॉक ए एंड देन स्विच टू प्रोसेस बी. Like that you can do. So based on time out, you can switch in between
and that's the way concurrency happens. ये थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल, इवन इंटरव्यू में नॉर्मली आपसे नहीं पूछेंगे ऐसे कि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है, टाइम स्लाइसिंग क्या है, बट मैं स्टिल आपको एक बैकग्राउंड कंटेक्स्ट दे रहा था. अब हम डायरेक्टली मैं आऊंगा जीसीडी पे. ठीक है, तो जीसीडी से हम शुरुआत करेंगे कि आईओएस में जीसीडी आई होप वैसे सबको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल अब जीसीडी का एकदम बहुत जो मेजर फंडामेंटल है दैट इज योर डिस्पैच क्यू. राइट, अब डिस्पैच क्यू इज नथिंग बट एक नॉर्मल क्यू है वो. ठीक है, नॉर्मल क्यू आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अभी तक, राइट, डीएसएम हम नॉर्मली पढ़े हैं. तो क्यूज का हमेशा देखो कि फंडामेंटल बिहेवियर सेम रहेगा, ये ध्यान रखना. कभी वो ऐसा फंडामेंटली बिहेवियर बदलने नहीं वाला है सच. कोई बहुत रेयर केस में अगर बदलता है तो अलग बात है, बट नॉर्मली नहीं बदलेगा. तो क्यू का नॉर्मल बिहेवियर क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो अगर क्यू में कोई पहले उसने टास्क ऐड कर दिया तो पहले स्टार्ट भी वही होगा. अब खत्म पहले कौन होगा ये अलग बात है, ये डिपेंड करता है आपकी सीरियल क्यू है, कॉन्करेंट क्यू और सिंक, और सिंक आपने क्या यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा. पर अभी पहले अपन सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टार्टिंग वाला जो है चीज, कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग वाला चीज, कि पहले कौन स्टार्ट होगा. तो वो स्टार्टिंग वाला जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहने वाला है. जिस ऑर्डर में आप टास्क ऐड करोगे द ऑर्डर विल बी सेम द वे यू एडेड द टास्क इन दैट पर्टिकुलर क्यू और पर्टिकुलर थ्रेड. ठीक है, क्यू आई कैन से, नॉट अ थ्रेड. सो पर्टिकुलर सपोज करो यू हैव क्रिएटेड वन क्यू, उसमें आपने टास्क 1 2 3 डाले, और वो डजेंट मैटर कि सीरियल क्यू है कॉन्करेंट क्यू, पर उसका ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग सेम होगा. सिमिलरली अगर आप कॉन्करेंट क्यू में भी 3 टास्क डालोगे और उसमें भी 3, और उसको मैं अगर नाम बोलूं 1 2 3 सीरियल क्यू में टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, एंड कॉन्करेंट क्यू में मैंने टास्क 4 5 6 डाले, तो स्टार्टिंग का ऑर्डर जो होगा वो 1 2 3 वाले कंटेक्स्ट में 1 2 3 में 1 2 3 वाला ऑर्डर मेंटेन होगा स्टार्टिंग का, बट एंडिंग खत्म होने का ऑर्डर चेंज हो सकता है. सीरियल क्यू में तो ऑर्डर सेम रहेगा, क्योंकि सीरियल क्यू इज ऑल अबाउट वन टास्क एट ए टाइम, और वो सीरियली वर्क करता है. ठीक है, सीरियल क्यू कॉन्करेंट क्यू पे मैं आऊंगा अभी डिफरेंस, पर मैं पहले आपको सिर्फ क्यू क्या चीज है वो बताना चाह रहा हूँ. क्यू में ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहता है. ठीक है, स्टार्टिंग, अगेन द पॉइंट इज स्टार्टिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर. ये अभी तक क्लियर है सबको? क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा होने वाला है. अब बात है कि खत्म होने वाली चीज, अभी हम इसके इवन आउटपुट वाले क्वेश्चन से भी समझेंगे, देखेंगे चीजें, बट मैं पहले आपको थोड़ा फंडामेंटली चीजें बताना चाह रहा हूँ. अब जो चीज है सीरियल क्यू कॉन्करेंट क्यू का बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है फंडामेंटली. सीरियल क्यू में जब तक एक टास्क खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा टास्क शुरू नहीं होता है. ठीक है, वन टास्क एट ए टाइम वाली चीज है सीरियल क्यू में. तो मैं आपको रियल टाइम में अगर ऐसे बोलूं एग्जांपल के लिए, इट्स लाइक कि आपको जैसे हम कोडिंग भी कर रहे हैं और हमें बीच में किसी ने खाना खाने को दे दिया, समवन गिव यू सम फूड फॉर ईट. ठीक है, तो अभी आपको खाना खाते वक्त हम नॉर्मली कोडिंग नहीं करते, राइट. तो हम लोग पहले पूरा खाना फिनिश करते हैं, फिर हम लोग हैंड वॉश वगैरह करके आएंगे, फिर वापस बैठेंगे. तो दिस इज समवॉट लाइक योर सीरियल क्यू बिहेव्स. जब तक वो टास्क खत्म नहीं होता तब तक दूसरा टास्क वापस शुरू नहीं करेगा वो, या सेकंड टास्क पे नहीं करेगा मूव. बट कॉन्करेंट क्यू में कैसा है कि इट्स लाइक कि किसी ने आपको चाय या कॉफी दिया, इट्स लाइक योर टी और कॉफी. अभी हम ऑफिस में ही बैठते हैं नॉर्मली, चाय कॉफी साथ में ले लेते हैं, काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में एक सिप भी ले लिया, फिर काम कर रहे हैं, फिर सिप लिया, करते हैं ऐसा हम लोग, राइट. दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्करेंट क्यू. कॉन्करेंट क्यू बीच बीच में स्विच करता रहेगा, और वो आपके दोनों टास्क मतलब पैरेलली चल रहे हैं काइंड ऑफ, और वो स्विच कर रहा है दोनों टास्क के बीच में. यहाँ तक क्लियर है? इस पे किसी को कोई डाउट है जितना अभी तक ये चीज जो मैंने अभी जस्ट बोली? तो ये फंडामेंटली चीज क्लियर रखें आप. अगर इसमें अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ये मैं कहूंगा इसको ध्यान रखो, सीरियल क्यू कभी भी अगला टास्क शुरू नहीं करेगा. इट विल नेवर स्टार्ट अनदर टास्क अंटिल अनलेस द करंट टास्क इज नॉट फिनिश्ड और कंप्लीटेड. एंड कॉन्करेंट क्यू में स्टार्टिंग ऑर्डर अगेन, जैसे अभी टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 बोलो कि कॉन्करेंट क्यू में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इट विल स्टार्ट फर्स्ट टास्क 1, देन टास्क 2 स्टार्ट, देन टास्क 3, बट फिनिश हो सकता है कि पहले टास्क 3 हो जाए और बाद में टास्क 1 फिनिश हो. अगर टास्क 1 मानो कि कोई लंबा टास्क है, टास्क 1 इज टेकिंग 10 seconds ऑफ टाइम, टास्क 2 इज टेकिंग 5 seconds ऑफ टाइम, बट टास्क 3 टेकिंग ओनली 2 seconds ऑफ टाइम. छोटा सा टास्क है उसमें कुछ, ठीक है, जो भी है वो टास्क कुछ भी हो सकता है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट से लेके कुछ डाउनलोड कर रहा है बैकग्राउंड में, वट एवर इट इज. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टार्ट तो उसी ऑर्डर में होंगे कॉन्करेंट क्यू में भी, पर खत्म कोई भी पहले हो सकता है. कोई भी पहले का मतलब है डिपेंड्स ऑन योर टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और वो स्विच करेगा और उसमें ऑर्डर रैंडम होगा, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यहां तक क्लियर है? और ये मैं अभी असिंक्रोनस के कंटेक्स्ट में भी कह रहा हूँ, अभी सिंक्रोनस पे भी आएंगे हम लोग.
ठीक है, तो नॉर्मल क्यू के पहले रहो, अभी असिंक सिंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक क्यू है हमारी, उसमें हमने टास्क डाले और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे किसी कुछ डाउट है एनीथिंग तो यू कैन आस्क। ऑल गुड, ओके। तो अब जो चीज है, अभी लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं बेस्ड ऑन आपका सिंक असिंक वाली चीज पे आते हैं। अब ये भी अगेन कंफ्यूज कर देता है थोड़ा सा, सीरियल क्यू और सिंक में लोग थोड़ा मिसमैच कर देते हैं, एंड ऑल्सो दे आर कंफ्यूजिंग विद कॉन्करेंट एंड असिंक। और सिंक असिंक से मेरा कहने का मतलब है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इन दोनों का कोई आपस में ऐसे लेना देना नहीं है, दो अलग चीजें हैं ये, तो इनको कंपेयर तो पहले हमको करना नहीं है, पर इन दोनों का मीनिंग समझना है कि ये सीरियल क्यू कॉन्करेंट क्यू क्या चीज है, वो एक क्यू है, ठीक है। क्यू में आप टास्क डालते हो अपने और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं ओएस लेवल पे। पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या कहना चाह रहा है कि वो बिहेवियर बता रहा है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सीरियल क्यू कॉन्करेंट क्यू ये डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा और किस ऑर्डर में खत्म होगा, ऐसा कह सकते हो आप। पर सिंक और असिंक ये डिसाइड करते हैं कि जो अभी करंट टास्क जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये आपका सिंक और असिंक डिसाइड करता है। तो एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं अपन। अब मान लो सिंक आपका, मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में कहता हूँ कि इट्स लाइक लॉकिंग योर डोर काइंड ऑफ, या फिर एक लॉक लगा देना या ब्लॉक कर देना किसी को। अब ब्लॉक कर देने का मतलब है, मान लो कोई बहुत देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रिटिकल थिंग एंड यू वांट टू मेक श्योर कि ये पहले होना ही चाहिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई सिनेरियो, एक तो बहुत रेयर सिनेरियो होते हैं ऐसे, और इसमें हम आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज अगर ऐसा कोई केस है जहां आप चाहते हो कि नहीं पहले ये होना ही चाहिए इसके बाद ही हम आगे बढ़े, और जब तक ये टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए पूरे मेरी ऐप के अंदर काइंड ऑफ, तो आप वहां पे सिंक यूज करते हो। ठीक है, तो सिंक का मतलब है सब कुछ रोक दो, पूरा फोकस यहाँ पे, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये सिंक एक्चुअली इस तरीके से काम करता है सिंक। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे भी क्वेश्चन अभी लेंगे जिसमें क्या आप देखोगे कि इवन दो आप ग्लोबल थ्रेड पे, कॉन्करेंट थ्रेड होती है, क्यू होती है बैकग्राउंड में, नॉर्मली जो ग्लोबल क्यू अवेलेबल होती है डिस्पैच क्यू में, तो उसमें भी अगर हम सिंक ब्लॉक लगा देते हैं तो कई बार टास्क मेन थ्रेड पे स्विच हो जाते हैं। अब आप बोलोगे मेन थ्रेड तो यूआई के लिए होती है सिर्फ, पर मेन थ्रेड फिर बाकी टास्क भी चलाता है अगर वो उसको आप ब्लॉक कर दोगे सिंक के साथ। तो पॉइंट कैसा होता है उसमें, क्या होता है जैसे आपने कोई टास्क चलाए और आपने वहां पे सिंक ब्लॉक लगा दिया, मतलब सिंक यूज कर रहे हो आप, डजेंट मैटर सीरियल क्यू कॉन्करेंट क्यू, पर आपने सिंक लगा दिया। सिंक लगा दिया इसका मतलब वो ब्लॉक हो गया है। अब जब तक वो जो कोड है उसके अंदर सिंक ब्लॉक के अंदर, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक मेन थ्रेड भी खाली बैठी रहेगी, वो बेचारी वेट कर रही है कि कब इसका काम खत्म हो तो मैं काम शुरू करूँ। ठीक है, तो ये फोन को समझ रहे हो? तो जब मेन थ्रेड खाली बैठी रहती है तो मेन थ्रेड भी सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो कई बार मेन थ्रेड खुद इन्वॉल्व हो जाती है उस टास्क को खत्म करने के लिए। ऐसा भी होता है। इस पर हम आएंगे और हम उसको प्रिंट करके खुद लॉग्स में देखेंगे। लॉग्स में एक प्रॉपर्टी होती है इज मेन थ्रेड करके समथिंग, वो आपको बताता है कि अभी आप कौन सी करंट थ्रेड पे, उसका नाम, उसका इज मेन मतलब मेन थ्रेड है कि नहीं, वो सब चेक कर सकते हो आप जीसीडी के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है इन शॉर्ट, सिंक से आप हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी ने कभी सिंक लगा दिया तो वहीं पे सारा एग्जीक्यूशन होल्ड हो जाएगा, और जब तक वो ब्लॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ और एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आसान भाषा में। ठीक है, so until unless that code block is not completed or finished, the execution will nothing, मतलब nothing will execute in the entire your project or code, something like that. अब async पे आते हैं। नॉर्मली हम async यूज करते हैं डे टू डे में, राइट? नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली वी यूज dispatch डॉट मेन डॉट async। ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, बचपन मतलब जब से हम लोग कर रहे हैं iOS। तो पॉइंट इज कि async क्यों करते हैं हम लोग? async का कहना है कि भाई async इज लाइक, जैसे मैंने वो असिंग इज लाइक वो चाय कॉफी वाला एग्जांपल दिया था आपको, उस तरीके से ही है कि मैंने आपको चाय देखी, मैं चला गया आपको, अब तुम पीते रहो, अपना काम भी करते रहो और भी काम पैरेलली करते रहो। जैसे मान लो मेरे हाथ में अभी चाय या कॉफी है, ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है, वॉट ये, तो मैं बीच में पानी भी पी रहा हूँ, मैं और भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, और मैं साइड में कुछ नोट्स भी लिख सकता हूँ, मैं एक बीच में कॉल भी ले सकता हूँ, राइट? ये हो गया असिंक्रोनस वाला चीज। तो मुझे ये जब ये टास्क मिला पानी पीने वाला टास्क, ये असिंक्रोनसली मिला मुझे। अगर मान लो इसमें सिंक लग जाता तो जब तक मैं पूरा पानी का ग्लास खत्म नहीं कर देता तब तक मैं कुछ और कर ही नहीं पाता, मैं इस ग्लास को रख भी नहीं सकता हूँ अगर ये आप मुझे सिंक ब्लॉक में दोगे तो। मतलब मैं ओएस हूँ उस तरीके से, उस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। पर अगर आप मुझे असिंक्रोनसली दोगे तो मैं और भी काम कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइक ओएस को हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर हम उसको असिंक्रोनसली दे रहे हैं तो ओएस बोल रहा है कि ओके ठीक है, तुमने कोई काम दिया मुझे, ठीक है भाई काम हो जाएगा,
पर उसके साथ पैरेलली भी वो और भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है और वो स्विच कर रहा है इन बिटवीन। ठीक है, बेस्ड ऑन अगेन प्रायोरिटी एंड शेड्यूलिंग, वो सारा ओएस टेक केयर करता है। आपको उसमें जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की, या कोई पूछेगा भी नहीं ऐसा, या उसके हम टेक केयर या उसका ध्यान भी नहीं रखते हम लोग, वो जीसीडी पूरा टेक केयर कर लेता है। ठीक है, कि कैसे शेड्यूलिंग करनी है, स्विच कैसे करना है बिटवीन। बट द पॉइंट इज कि हम लोग मोस्टली असिंक ही ट्राई करते हैं या असिंक ही करते हैं यूज। क्यों? क्योंकि आपको रोकना नहीं है, आपको हैंग नहीं करना है या ब्लॉक नहीं करना है, क्रैश नहीं करना है, ये ध्यान रखो। अब कब क्रैश होता है कब हैंग होता है उस पर भी हम आएंगे बाद में। बट द पॉइंट इज कि हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि ऐप स्मूथली चलती रहनी चाहिए। द एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टॉप, शुड नॉट स्टॉप, राइट? तो ऐप शुड वर्क लाइक स्मूथली। अगर आपने वहां पे सिंक वाले ऐसे ब्लॉक्स लगा दी तो फिर आपको क्रैश भी आ सकता है, ऐप हैंग भी हो सकती है, और आपको रन टाइम एरर आ सकते हैं। ठीक है, इस पर हम आएंगे बाद में। पर अगर आप असिंक्रोनसली यूज करोगे तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, कि बहुत रेयर केस में इश्यू आएगा, बट नॉर्मली नहीं आएगा। ठीक है, तो असिंक क्या बोल रहा है कि भाई आपने जैसे कोई टास्क दिया उस पर्टिकुलर क्यू को, थ्रेड को या ओएस को, वो टास्क लेके अपने बैकलॉग में डाल देगा काइंड ऑफ, मतलब अपने उसमें रखेगा वो टू डू में, कि हाँ मैं इसको करता हूँ, जब तक और भी काम चल रहा है चलते रहने दो, उसको साइड में रख देगा वो। और जैसे जैसे उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और प्रायोरिटी मिलती जाएगी टाइम, उसके साथ वो उसको थोड़ा थोड़ा करके एग्जीक्यूट करके खत्म करके फिर आपको कॉल बैक आ जाएगा बाद में, पूरा टास्क खत्म हो गया। वो कॉल बैक पे भी मांगेंगे कैसे कॉल बैक आते हैं, या डिस्पैच ग्रुप में हम आगे वो चीज देखेंगे। पर हाँ, द पॉइंट इज कि ये बात आप समझ पा रहे हो, ये क्लियर है सिंक और असिंक के बीच का डिफरेंस। सिंक इज लाइक लॉक लगा दिया, ब्लॉक कर दिया, जब तक ये टास्क खत्म नहीं होता आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा ही सिस्टम रुक जाएगा काइंड ऑफ। पर असिंक बोल रहा है कि भाई कुछ मत रोको, बस ये इतना प्रायोरिटी पे नहीं है, मतलब ले लो और कर लो अपना आराम से जितना आपको करना है, और जब हो जाए तो बता देना। ठीक है, मतलब आगे बढ़ो, इट्स लाइक दैट। ठीक है, ये क्लियर है? इस पे किसी को डाउट, एनी कंसर्न? सिंक असिंक वाला चीज इस पे आप थम्सअप कर सकते हो। अभी तक सीरियल कॉन्करेंट क्यू और सिंक असिंक का डिफरेंस समझाता हूँ। और इसमें इंटरव्यूअर जानबूझ के आपको कंफ्यूज करते हैं, सीरियल वर्सेस सिंक पूछेंगे और कॉन्करेंट वर्सेस असिंक पूछेंगे। तुमको बोलो भाई एक तो ये कंपेरेबल वाली चीज नहीं, इट्स लाइक कि आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। पर हाँ, उसका पूछने का पॉइंट ये है कि वो पूछना चाह रहा है कि हाउ sync works, how serial queue works, how asynchronous works and how concurrent queue works। तो ये राइट क्वेश्चन है पूछने का। पर अगर आप इन दोनों के बीच को ऐसे कंपेयर करके डिफरेंस पूछ रहे हो तो ये थोड़ा राइट क्वेश्चन है भी नहीं, बट ठीक है, नॉर्मली ये पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, तो अगर आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से आप बिंदास आंसर करके आओ। और फिर उसमें अगेन अभी हम उस पर भी आएंगे कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में कैसे हम चीजें उसको डील करते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट, और कब क्या कैसे वर्क करती है चीजें। पर फंडामेंटली क्लियर है कि ठीक है, कॉन्करेंट सीरियल क्यू एंड सिंक असिंक, तो इतना ही बेसिक फंडामेंटल यही है इन चीजों का। अगर यहाँ तक क्लियर है एक क्वेश्चन। यस ऋषि। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे इतना पता है कि नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो सीरियल और कंकरेंट क्यूज है, वहां से वर्कर्स पूल पे पास होता है एग्जीक्यूशन के लिए, या कैसे? अगर इस पे थोड़ा बता सकते हैं। वर्कर पूल पे होता है, वर्कर पूल पे मैं आगे आऊंगा, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो वेट फॉर। ओके। और अगेन मैं इस तरह के टॉपिक्स को पहले, मतलब हम फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं, और वर्कर पुल पे मुझे नहीं लगता नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, बट स्टिल हम उस चीज पे आएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक जो चीज है कि आपका कॉन्करेंट क्यू, सीरियल क्यू और सिंक असिंक वाली चीज क्लियर है। तो अब हम लोग इस पे आते हैं कि अब इवन दो आपको मैं एक चीज बता दूं, इस पे हम आगे डिटेल पे भी आएंगे, कि एक चीज होती है टारगेट क्यू करके। ठीक है, तो जो भी हम लोग क्यू बनाते हैं डिस्पैच क्यू में, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है टारगेट क्यू करके एक चीज होती है, जो टारगेट क्यू आपका टेक केयर करती है उन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टारगेट क्यू जो है वो एक्चुअली उससे रिलेटेड है, वो पुल वाली चीज से, उस पर हम आगे आएंगे, बट मैं आपको जैसे कंटेक्स्ट देके रख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो उसके पहले मैं चाहूंगा हम लोग इस पे भी बात कर लें। दिस इज योर ये चीज। अब इवन दो अभी मेरे पास वो रेडी नहीं है सच, बट फ्रॉम टुमारो यू विल गेट प्रॉपर some diagrams and PPT and all that thing, something like that, so that आपको relate करने में भी easy जाएगा। तो या तो अभी हम लोग इस पे आ रहे हैं QoS पे। ठीक है, QoS सुना होगा सबने, क्वालिटी ऑफ सर्विस, राइट? हाँ, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे हम आ रहे हैं। अब उसमें मैं आपको बता दूं काइंड ऑफ 6 तरीके के होते हैं, बट
4 इज मेजर एंड 2 आर लाइक, उस पे आता हूँ मैं, डिफॉल्ट और एक अनस्पेसिफाइड करके रहता चीज। ठीक है, तो अब पॉइंट इज की क्यूएस में कैसा हो रहा है कि आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है, उसमें सारा खेलना प्रायोरिटीज का है। तो किसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ज्यादा प्रायोरिटी मतलब कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पॉइंट ये है। तो अभी क्यूएस करके एप्पल ने एक चीज बनाई कि डिस्पैच क्यूज आप बना रहे हो तो आप यूजर को नहीं, सॉरी, मतलब ओएस को बता सकते हो कि कौन सा टास्क ज्यादा प्रायोरिटी पर है तो उसको भाई पहले एग्जीक्यूट कर, और कौन सा कम प्रायोरिटी पे उसको बाद में एग्जीक्यूट कर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगेन इस पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक तो बहुत बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ये कि भाई कितने तरह की क्यूएस है, वो तो आप कोई भी पढ़ के बता देगा। ठीक है, तो उसमें काइंड ऑफ 6 तरीके के, तो आप बोल सकते हो यूजर इंटरेक्टिव एक होता है, एक यूजर इनिशिएटेड होता है, एक यूटिलिटी है, एक कुछ बैकग्राउंड है, एक डिफॉल्ट, एक अनस्पेसिफाइड, ऐसा करके 5-6 होते हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत बेसिक थ्योरेटिकल चीज हो गई। बट अब ऐसा पूछ लेते कि कौन से केस में कौन सा करना चाहिए, कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे पूछ लेंगे, तो उसका आपको एटलीस्ट एक यूज केस पता हो या आप ये डिफाइन या एक्सप्लेन कर पाओ कि किस केस में क्या हम प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस की बात है ये, और अगेन ये बहुत कस्टमाइज चीज है, मतलब ये बहुत वेरी कर सकता है आपके केस टू केस के ऊपर या आपके प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट के ऊपर, या जो आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करो उसमें क्या कंटेक्स्ट है आपका, क्या करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा प्रायोरिटी देना है उस पर्टिकुलर क्यू को। आप उसको यूजर इंटरेक्टिव रखना चाहते हो, यूजर इनिशिएटेड, बैकग्राउंड, या डिफॉल्ट भी, अगर कुछ भी क्यूएस नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहेगा, तो डिफॉल्ट की भी एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, उसी 6 में एक डिफॉल्ट भी है। ठीक है, तो उस तरीके से तो मैं उस केसेस पे आ जाता हूँ। नॉर्मली हम जो 4 हैं इसमें, उनमें क्या केसेस में कौन सा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला है आपका यूजर इंटरेक्टिव। यूजर इंटरेक्टिव इज लाइक कि अगर आपको लग रहा है कि हमें यूआई अपडेट करना है और उस यूआई अपडेट में उसका इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर टास्क का, तो उसके लिए हम लोग जो क्यू बनाएंगे और वो टास्क जो एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम यूजर इंटरेक्टिव देंगे प्रायोरिटी, या उसका क्यूएस मतलब आप यूजर इंटरेक्टिव सेट करोगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि ओएस को पता होता है कि ओके ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ओएस का एक चीज ध्यान रखो, ओएस इज वेरी, मतलब वेरी मच कंसर्न अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऐप, द परफॉर्मेंस ऑफ योर यूआई बेसिकली। ठीक है, तो यूआई लैग नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लैग्ड, इट शुड नॉट बी हैंग्ड। तो इस वजह से दिस इज वेरी हाई प्रायोरिटी कि आपका जो इंटरेक्शन चल रहे हैं ऐप में वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, उसमें लैग नहीं आना चाहिए, उसमें ऐप हैंग नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेजर प्रायोरिटी ऑफ एंटायर। इसलिए iOS ने मेन थ्रेड को अलग से रखा। उस पर भी हम आएंगे कि क्यों मेन थ्रेड यूआई किट से बाउंडेड है और क्यों आप उसके पीछे 1-2 पॉइंट है, वो भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज अभी के लिए तो यूजर इंटरेक्टिव करके इन्होंने एक प्रायोरिटी बना दी। ठीक है, जीसीडी में एप्पल ने, उन्होंने बोला तुम्हें कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि समथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फॉर योर यूआई अपडेट्स, तो आप फिर यूजर इंटरेक्टिव वाली सेट कर देना प्रायोरिटी, हम समझ जाएंगे, हम उसको फिर प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट करके आपको फटाक से दे देंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? प्रायोरिटी बहुत हाई है। तो जब तक कभी भी आपको लग रहा है कि ओके, आप बस अपने आप से एक ही सवाल पूछो कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो टास्क जो मेरा है उसमें अगर यूआई का इन्वॉल्वमेंट है, यूआई अपडेट इन्वॉल्वमेंट है अगर उसमें, या तो उसमें एग्जाम्पल के एनिमेशन हो सकते हैं और भी चीजें होती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप यूजर इंटरेक्टिव बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आप अगेन इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। इस तरह का एक यूज केस है, ऐसे और भी यूज केस हो सकते हैं, होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द यूज केस। अब सेकंड जो चीज है आपका, दैट इज योर यूजर इनिशिएटेड। हाँ दर्शन, आप बोलिए। जैसे आपने बताया कि क्यूओएस में सबसे प्रायोरिटी पे रहता है कि यूजर इनिशिएटेड, और एक, यूजर इंटरेक्टिव, हाँ सॉरी, यूजर इंटरेक्टेड, और जो हाई प्रायोरिटी पे है क्यूओएस में, और एक क्यू ऐसा चल रहा है दैट इज रनिंग विथ मेन थ्रेड। हाँ, तो दो अलग चीज। हाँ, दो तो अलग चीज। अगर दोनों टास्क अगर रहते हैं, जैसे मेरा मेन थ्रेड में चल रहा है यूआई एनिमेशन, और मेरा एक टास्क चल रहा है विथ यूजर इंटरेक्टेड जो मैंने ग्लोबली किया हुआ है, तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा? रिसोर्स को किसको अलोकेट रहेंगे? नहीं, देखो, दो अलग चीजें हैं, ये दो अलग थ्रेड पे काम चल रहा है या दो अलग क्यूज में काम चल रहा है। तो आपका यूआई किट तो मेन थ्रेड से बाउंडेड ही है। ठीक है, तो वो तो अपना काम कर ही रहा है, उसको ये छेड़ नहीं रहा है सच। और एक आपने अपना एक अलग से बैकग्राउंड या कह लो या कॉन्करेंट क्यू बना दी। ठीक है, या सीरियल क्यू होती है, वो बना के उसको आपने प्रायोरिटी दे दी यूजर इंटरेक्टिव। तो अभी जैसे आपके सिस्टम तो नॉर्मली मल्टी कोर होते हैं, राइट?
तो एक आपका पैरेलली मेन थ्रेड भी चल रहा है, उसके साथ आपने एक और अपना इंट्रोड्यूस किया और वो भी प्रायोरिटी उसको हाई दे दी, सो डैट कि अब ओएस आपको एज अ हाई प्रायोरिटी ट्रीट करेगा उस टास्क को और वो आपको जल्दी से अपडेट करके दे देगा, इस तरीके से वो चीज। तो अगर कंपैरिजन पे आगे हाँ, एक और लाइक इफ आई हैव पुट द कोड लाइक माय टेबल डॉट रीलोड इन यूजर इंटरेक्टेड, तो फिर यूजर इंटरेक्ट ये आप करके देखो एक बार क्या होता है, बताओ। कुछ एरर आता है या आपको वार्निंग मिलती है या फिर क्रैश करेगा, तीनों में से एक चीज होगी, या फिर कुछ नहीं होगा, सिंपली चलेगा। मैं आपको क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा अभी, इस तरह क्वेश्चंस को लेंगे आगे जी। ओके यस ठीक है। तो अभी एक बात करी हमने कि यूजर इंटरेक्टिव एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है और वो आपका नॉर्मली यूआई अपडेट्स के लिए काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल कह लो या उस तरह केसेस में हम लोग उसको वो करते हैं। हाँ अर्जुन जो कह रहे हैं, अर्जुन ठीक है, इस पर हम चीजें एक्चुअली मैं इसको काइंड ऑफ बोल के नहीं बताना चाहता हूँ, हम कोड में जाके ही ये चीजें करके देखेंगे और आप लोग भी अपने एंड से करो और फिर आप भी एनालाइज करो कि ओके इस तरह के केस में अभी करंटली हमारे ऐप में क्या बिहेव हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, पर क्या हो रहा है ये तो आप लोग चेक कर सकते हैं राइट। और उस पर हम आएंगे क्वेश्चन वगैरह पे भी कि किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं और इसमें क्यों ऐसा बिहेव करता है ओएस, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं राइट। तो हाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड प्रायोरिटी वाली चीज की, जो है आपका यूजर इनिशिएटेड। यूजर इनिशिएटेड में कैसा एग्जांपल के लिए नॉर्मली लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने एग्जांपल के लिए अमेजोन का एग्जांपल ले लो या फिर इंस्टाग्राम का ले लो, ठीक है, जिसमें आप फीड वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फीड में आप जाते हो, इनिशियली 10 या 20 होते हैं उसमें पोस्ट आपके, या लिंक्डइन का एग्जांपल ले लो, और फिर आप और स्क्रॉल करते जाते हो तो और लोड मोर करके और फिर से API कॉल होता है, फिर कुछ और डेटा ऐड हो जाता है, फिर अगेन लोड मोर। इस तरह की चीजें अगर है जिसमें पॉइंट ये है कि यूजर को इमीडिएटली तो नहीं चाहिए पर समवॉट उसको चाहिए अगर सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो नहीं है बट सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको हम देते हैं काइंड ऑफ। तो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी यूजर इनिशिएटेड को दी जाती है, क्योंकि अगर मान लो उसमें कुछ लैग आ गया तो उसको थोड़ा लैगिंग मिलेगा, फिर वो बेचारा स्क्रॉल कर रहा है और डेटा आया ही नहीं या आगे का यूआई लोड ही नहीं हो रहा है, वो वेट कर रहा है बेचारा। तो इस तरह की चीजों में यूजर इनिशिएटेड एप्पल ने बोला कि आप दे दो। अब इसमें अगेन ऐसा भी देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई रूल सेट नहीं है, पर रिकमेंडेशन है ये काइंड ऑफ, ठीक है, रिकमेंडेशन। और इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप सब में मान लो यूजर इंटरेक्टिव यूज करने लगे तो सारी थ्रेड घूम रही है मार्केट में, मतलब आपके प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में, एंड एवरी थ्रेड हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी जो कि रिकमेंडेड नहीं है, फिर उस वजह से इश्यूज अलग आएंगे और मान लो क्रैश भी हो सकता है, ब्लॉक हो गया, और मान लो उसमें कोई आपने कोई ऐसी साइकिल क्रिएट कर दी, रिटेन साइकिल, इस तरीके की कुछ चीजें होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का पॉइंट है कि हर जगह यूजर इंटरेक्टिव यूज नहीं करना होता, ठीक है, आपको जितना हो सके ओएस को ऑप्टिमाइज भी रखना है या अपने कोड को ऑप्टिमाइज रखना है, ऐसा कह सकते हो। तो कम रिसोर्स यूज करके जब एक्चुअल में सच में आपको लग रहा है कि यहाँ इसकी प्रायोरिटी है, मुझे करना चाहिए यूजर को यूआई अपडेट देना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना थोड़ा सा भी इसमें लैग हुआ तो दिख के आ जाएगा उसको या उसको फील होगा, तो उसके लिए यूजर इंटरेक्टिव कर रहे हैं हम लोग। पर अगर हम लोग का ऐसा है कि नहीं ठीक है डायरेक्टली यूआई अपडेट से इन्वॉल्व नहीं है बट समवॉट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है उसकी, या घुमा फिरा के वो काइंड ऑफ से रिलेट कर रहा है, और वहां पे जैसे एग्जांपल के लिए यू आर लोडिंग मोर डेटा और वहां पे आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो यूजर इनिशिएटेड वाला क्यूएस इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आप ये वाला प्रायोरिटी यूज कर सकते हो, जो कि यूजर इंटरेक्टिव से थोड़ा सा नीचे आता है, सेकंड प्रायोरिटी पे कहते हैं लोग काइंड ऑफ इसको, ठीक है। अब जो थर्ड वन है जिसमें आपका ऐसा है कि यूजर को ऐसा एक्सपीरियंस में तो नहीं देगा वो दिक्कत, बट ऐसा है कि कुछ एग्जाम्पल के लिए आपका यूट्यूब पे जो आप ये करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो आप यूट्यूब पे, या और भी एग्जाम्पल ले लो, कोई फाइल डाउनलोड करते हो आप, जो कि इवन तो एक्सपीरियंस तो खराब नहीं करता हो, बैकग्राउंड में चालू हो जाता है डाउनलोडिंग, पर आपको प्रोग्रेस दिख रही होती है उसकी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब आप खोल सकते हो, ऑफलाइन में हम वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसका पूरा प्रोग्रेस वो दिखाता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए और भी कोई ले लो, आप हॉटस्टार ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, ठीक है, इनमें भी हम लोग मूवीज या सीरीज को डाउनलोड करते हैं, कोई एपिसोड डाउनलोड करते हैं, तो वो जो डाउनलोड करके आप छोड़ सकते हो राइट, आप ऐप में और भी कहीं जाओ, ऐप को आप बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो। तो पॉइंट ये है कि वो चलते रहता है डाउनलोडिंग, आप ऐप खोल के रखो, आप अपना और भी काम करो, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, पर द पॉइंट इज कि उससे यूजर को डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है यूजर, उसको दिख रहा है कि हाँ कि समथिंग आई स्टार्टेड एंड आई एम वेटिंग टू लेट इट कंप्लीट राइट। तो उस केसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं है, पर हाँ ये है कि यूजर को दिख तो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट तो करना है समहाउ, तो उसको बिल्कुल भी लो प्रायोरिटी भी नहीं रख सकते,
तो लो से थोड़ा सा ऊपर रखा है एप्पल ने, तो बोला कि भाई लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है ये, पर ये थर्ड प्रायोरिटी पे रख दिया इसको, और इसको यूटिलिटी का नाम दे दिया। तो कोई भी ऐसी यूटिलिटी आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो फाइल डाउनलोडिंग हो गया, कोई इमेज रेंडरिंग हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पे डायरेक्टली उसको वहां उस स्क्रीन पे उसको ऐसा इफेक्ट नहीं दे रहा है वो, पर बैकग्राउंड में उसको प्रोग्रेस दिख रही है उस टास्क की, और वो चाहता है कि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेगा कि प्रोग्रेस बढ़ती रहे और एट दी एंड खत्म होनी चाहिए जल्द से जल्द जितना हो जाए। उन केसेस के लिए आप यूटिलिटी वाला प्रायोरिटी नॉर्मली पीपल रिकमेंड कि करना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई रूल नहीं है, आप चाहे इसको स्विच कर दो, आप इसी में आप यूजर इंटरेक्टिव या यूजर इनिशिएटेड भी यूज कर सकते हो, मना नहीं है। और सेम थिंग इस टास्क के लिए आप उनको कर सकते हो, और उनके उन टास्क के लिए आप इनको भी कर सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो, मना नहीं है, कोई रूल नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन है। और इसमें एप्पल ने आपको काइंड ऑफ बोला है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज है, इस तरह के सिनेरियो में हम लोग रिकमेंड करते हैं। बाकी फिर आपका कॉल है कि आप अपने कोड को कैसे डील कर रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मल इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगेन एक एग्जांपल दे दो किस में कौन सा यूज करना चाहिए, तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ऐसे और एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, गूगल करोगे नॉर्मली यू विल गेट मोर एग्जांपल्स। तो इस एग्जांपल को आप समझ पा रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि यूजर को डायरेक्टली तो फर्क नहीं पड़ रहा, पर समवॉट बैकग्राउंड में उसको प्रोग्रेस दिख रही है, कुछ तो डाउनलोडिंग चल रहा है। उस तरह के केसेस में आप अपने बैकग्राउंड क्यू और थ्रेड में यूटिलिटी सेट करके यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब लास्ट जो आपका बैकग्राउंड वाला जो कि समवॉट लीस्ट प्रायोरिटी है। बैकग्राउंड में कैसा है कि एग्जांपल के लिए आप बोलो कि कुछ तो बैकग्राउंड में ही कुछ आप अपना बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसिंग चला रहे हो, कोई टास्क चलाना चाहते हो, और उसका ना तो उसको यूजर को बिल्कुल भी फर्क भी नहीं पड़ता, प्रोग्रेस चल रही होगी पर ना वो देख रहा है ना उसको फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप का बैकअप बैकग्राउंड में हो जाता है, राइट। आपने नोटिस भी किया होगा, नॉर्मली डेली होता है बैकअप, अगर आपने उसको मैनुअली एक्टिवेट किया हुआ है तो, या वीकली होता है। ठीक है, तो मैं डेली बैकअप की चलो अभी बात कर रहा हूँ। तो इफ यू हैव मतलब ऑप्टेड ऑन फॉर डेली बैकअप व्हाट्सएप में, अब वो जब डेली बैकअप होता है ना, तो आपको नॉर्मली अपनी ऐप भी आप यूज कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं वो कहीं पे, जब तक आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे नहीं जाते हो। ठीक है, तो सच इस तरह की चीज को आप बैकग्राउंड वाले केस में ले सकते हो, जहाँ पे हाँ बैकग्राउंड में एक बैकअप चल रहा है, पर हाँ यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना यूजर उसको देख रहा है, ना जाके चेक कर रहा है सच, ना वो कहीं पे हाईलाइट हो रहा है आपके अंदर। एक पर्टिकुलर अंदर कोने में जाके एक ऑप्शन दिया है व्हाट्सएप ने, जो चैट के अंदर, चैट बैकअप के अंदर जाओगे तो वहां दिखेगा, तो इतना कोई नॉर्मली जाता नहीं है, तो इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बैकग्राउंड में चल के अपना खत्म भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी हम नॉर्मली उस पर जाते हैं तो दिखाता है कि लास्ट बैकअप कब लिया था, तो उससे हमें समझ जाते हैं क्योंकि लास्ट बैकअप टुडे 7 AM ऐसा दिखा देगा वो, और उस पर पूरा साइज दिखा देगा। ठीक है, साइज दिखाता है कि अभी तक जितना बैकअप लिया उसका इतना साइज है, और ये आपकी गूगल ड्राइव या iCloud पे अपडेटेड है। अभी हम iCloud की बात करेंगे iOS के कंटेक्स्ट में, पर आपके एंड्रॉइड में गूगल ड्राइव पे रहता है। सो द पॉइंट इज कि इस तरह की केसेस में जहां पे आपको पता है कि यूजर उस प्रोग्रेस को ना देख रहा है, ना उसको इतना फर्क पड़ता है उस चीज से, उस तरह की केस में आप लीस्ट प्रायोरिटी यूज करो, समझ पा रहे हो। वरना इसको मान लो आपने हाई प्रायोरिटी कर दिया, तो आपके बाकी जो हाई प्रायोरिटी वाले काम बेचारे इफेक्ट हो जाएंगे इस वजह से। तो आपको ये हमेशा डिसाइड करना है कि जो मेरा सच में ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है, जिससे यूजर को फर्क पड़ेगा ऐप के अंदर, उसको मैं हाई प्रायोरिटी दूंगी या दूंगा। और बाकी जो मेरे लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, जिस तरीके एक तरह का ये बैकग्राउंड टास्क मुझे कोई चलाना है जिसका इससे यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी रखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं बिटवीन, ये क्यूएस को हम सेट करते हैं। तो ये जो चार मैंने भी बताया, ये आपको क्लियर है, इस पे कुछ कंसर्न है इन चार पे, यूजर इंटरेक्टिव, यूजर इनिशिएटेड, यूटिलिटी एंड बैकग्राउंड। एनी कंसर्न ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? क्वेश्चंस पे हम आगे आएंगे। अभी तक जो चार प्रायोरिटी, यू कैन थम्स अप कि क्लियर है ये चीज, और जो चार यूज केसेस की हमने बात करी। यस अंशुमन, ओके ओके, ठीक है। और कोई? अच्छा, बाकी लोगों को कुछ मतलब मुझे ये भी दो फीडबैक कि समझ रहा है कि नहीं, तो मतलब मुझे लगेगा कि फिर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ढंग से। ठीक है, हाँ। तो किसी, हाँ विक्रम, आप कुछ कहना चाहते हो? जी। यार आपकी स्क्रीन शेयर कुछ दिख नहीं रहा यार। स्क्रीन पे मैं कुछ अभी तक दिखा नहीं रहा हूँ, मेरा वीडियो ऑन है बस। अच्छा, वो है, मैं तो जी ज्यादा देर हो गई यार, कुछ दिख ही नहीं रहा, बातें चल रही है। हाँ, आप अभी ज्वाइन किए हो, हम लोग अभी जस्ट कुछ टॉपिक्स कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, और आपके पास ऐसा पीपीटी नहीं है, बट फ्रॉम टुमारो यू विल हैव सम विजुअल वाला चीज भी थोड़ा ग्राफिक्स। जी ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि चार इस तरह के क्यूएस है हम लोग के पास। एक काइंड ऑफ क्यूएस को मैं बोलूं कि
एप्पल ने बोला कि भाई प्रायोरिटीज के लिए हमने ऐसे कुछ केसेस बना दिए। अब इसमें डिफॉल्ट वाला भी एक होता है और एक अनस्पेसिफाइड भी होता है। तो डिफॉल्ट पे कह लो कि नॉर्मली डिफॉल्ट प्रायोरिटी वो सेट होती है, और अनस्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर केस में होता है, वो मैं एक बार चेक करके बोलूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो चीज। तो डिफॉल्ट कैसे है कि अगर आपने जब कोई क्यू बनाई और उसमें आपने कुछ भी सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वाला ले लेता है काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है हम कोई भी क्लास बनाते हैं, कोई एप्पल की क्लास एपीआई या फ्रेमवर्क यूज करते हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई होती है। तो जब तक आप उसको कुछ खुद से ओवरराइड नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू लेके चलता है। उस तरीके से इसमें भी है, अगर आप खुद से कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी बना के रखिए, जो कि समवेयर लाई करती है आई थिंक यूटिलिटी और यूजर इनिशिएटेड के बीच में, जितना मुझे याद आ रहा है। मैं एक बार चेक करके बोलूंगा या आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी इन्होंने बना के रखी है। ठीक है, तो अगर मान लो अपन ने कुछ भी ऐसा बोला नहीं एप्पल को या ओएस को कि भाई कि मेरे को नहीं पता या मुझे कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करनी है, तो दैट इज फाइन। वो अपने हिसाब से एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी उन्होंने बना के रखी, उस डिफॉल्ट प्रायोरिटी के हिसाब से वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसको उतनी प्रायोरिटी देगा वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी। और अगर आप खुद बोलते हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, तो आप उसको बोल रहे हो कि यूजर इंटरेक्टिव, आप बोल रहे हो नहीं थोड़ा कम प्रायोरिटी, तो यूजर इनिशिएटिव आप बोल रहे हो एकदम ही लो प्रायोरिटी है बैकग्राउंड, तो वो आप खुद ओएस को बता रहे हो, उस हिसाब से ओएस समझता है और फिर वो ओएस एक्ट करता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है चीजें। तो हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे थोड़ा सा ऑन बेस्ड ऑन जीसीडी बेसिकली कॉन्करेंट क्यू एंड दिस। और उसके पहले मैं चाहूंगा डिस्पैच ग्रुप पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। डिस्पैच ग्रुप, डिस्पैच ग्रुप देखो इसमें और भी चीजें हैं, इवन तो शायद हो सकता है आज मैं टॉपिक ना ले पाऊँ, कल हम लेंगे, जो कि है डिस्पैच बैरियर, डिस्पैच सेमाफोर, इस तरह की चीजें, और डिस्पैच वर्क आइटम। ठीक है, अब कैसा होता है कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, हम उस पर भी आएंगे एनएस ऑपरेशन वाला चीज, पर एनएस ऑपरेशन हम आज नहीं ले रहे हैं, कल लेंगे। पर हाँ द पॉइंट इज की आपको लोग पूछ लेते हैं तो उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीसीडी में टास्क कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो भाई इसका आंसर है यस कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग डिस्पैच वर्क आइटम। ठीक है, और भी कोई अप्रोच हो सकती है बट नॉर्मली दिस इज रिकमेंडेड वे टू कैंसिल द टास्क। ठीक है, आई होप आपने शायद किया भी होगा आपके प्रोजेक्ट्स में, या आपने कहीं ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूशन में भी देखेंगे कैसे करते हैं, और इसको रियल टाइम में किन सिनेरियोज में हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक यूज केस में बताऊं, जैसे अब नॉर्मली आप भी यूज करते हो, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो या फिर जीमेल का एग्जांपल लो। जीमेल में जब आप कोई नया ईमेल आईडी बनाते हो, ठीक है, साइन अप करना आज जाके एक बार, तो जब भी आप जैसे उसमें वहाँ पे कुछ डालते हैं तो वो हम जब डालने लगते हैं ना एकदम से पूरा टाइप करते हैं, तो एक टाइप के बीच में एक थोड़ा सा डिले रखते हैं वो लोग। वैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं इस तरह की चीजें, जहाँ पे कोई सर्च फीचर होता है या इस तरह का कोई यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं, इस तरह के फीचर के लिए। तो उसमें क्या हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है प्रीतम, ठीक है, तो अभी मैं एकदम से मेरा नाम अगर मान लो प्रीतम है तो मैं डायरेक्टली PRITAM तो ऐसा क्विकली राइट अवे टाइप कर दूंगा ना, ऐसा अटक अटक के तो टाइप नहीं करूंगा। तो मैं प्रीतम टाइप करके अगर मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, तब एक्चुअली वो एपीआई हिट करेंगे और वो बताएंगे कि प्रीतम यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, और अगर मान लो मैं पहले ही रुक गया, PRIP में अगर रुक गया तो PRI के लिए फिर वो कॉल चला जाएगा और फिर चेक करेगा। इन केसेस में आप डिस्पैच वर्क आइटम का यूज कर सकते हो, जहां पे आपने एक टाइम आउट लगा के रखा है, अगर यूजर 1 सेकंड के लिए भी रुक गया तो एपीआई हिट करो, और अगर नहीं है तो फिर चलते रहने दो, और जैसे ही आप हिट करने जाते हो तो एग्जिस्टिंग टास्क को आप कैंसिल कर देते हो। मतलब कि मान लो PRI पे हिट किया था और वापस PRIT पे हिट किया तो PRI वाला वो कैंसिल कर देगा और PRIT वाला कॉल जाएगा, और PRIT वाले कॉल का फिर जो रिस्पॉन्स आएगा तब वो दिखाएगा कि ओके दिस यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरीके में हम लोग, हाँ डी बाउंसिंग, ओके, हाँ वो भी वन ऑफ द केस है। तो प्रश्न एक बार आप ब्रीफ करो उसको, आप इस किस क्या क्या कहना चाहते हो डी बाउंसिंग से? Basically, you just suggested this optimizing the network request on each stroke for in the search bar, for example. And other use case maybe suppose if you are using an e-commerce application, for example, Nykaa, and whenever you are increasing the quantity, so if some user, let's say, keeps tapping this plus in 1 second, so you can handle those things through debouncing, right, so that you cannot flood the backend server with multiple network requests in a single second. Exactly. Those things can be handled by dispatch work item. Right. ठीक है, इवन अभी जैसे मैं भी बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो हम उन केसेस में
ये चीजें यूज करते हैं। जैसे अभी प्रसून ने बताया, वो मल्टीपल कॉल्स, या फिर कई बार हम ना रिपीट ट्रांसफर का हमारा केस होता है, या फिर पेमेंट वाला केस होता है, उसमें भी हम ये चीज चेक करते हैं। कई बार जो मल्टीपल टैप कर दिया उससे मल्टीपल कॉल ना चला जाए, इस तरह की चीजें के लिए। ठीक है, तो कूल, थैंक्स प्रसून। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसमें हाँ, मैं डिस्पैच वर्क आइटम पे आ गया था, पर अभी डिस्पैच ग्रुप पे आते हैं हम लोग। डिस्पैच ग्रुप क्या कर रहा है आपका, मेनली ये यूज हो रहा है ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग करने का मतलब पॉइंट में एक एग्जांपल अगेन ले लो आप। एग्जांपल के लिए अगेन आप अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें नॉर्मली मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप ऐप खोलते हो तो एक नॉर्मल एक डैशबोर्ड आता है अमेजोन का, ठीक है, या फ्लिपकार्ट का, या मिंत्रा का, किसी का भी ले लो, इवन नाइका का। तो अब उसके लिए पहले कुछ सेट ऑफ एपीआई कॉल्स है, हो सकता है मल्टीपल कॉल हो, ठीक है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं होती कि आपको लगेगा कि एक ही एपीआई कॉल में सारा डेटा आ जाता होगा, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, तो रियल टाइम में वहां पे 2-3 कॉल्स लगे हुए हैं। एक कॉल में मान लो कि दे आर गेटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज, एक में दे आर गेटिंग सम ऑफर एंड कैंपेन डिटेल्स, जो कि वो डैशबोर्ड पे दिखाते हैं वहां पे। एक में कुछ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू सम अदर स्टफ, पेमेंट रिलेटेड और समथिंग योर करंट लोकेशन, वट एवर, ऐसा कुछ डिटेल आ सकती है। तो पॉइंट इसकी, मान लो 3 एपीआई है, तीनों में कुछ कुछ डेटा आ रहा है, जो कि तीनों डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू लोड दैट डैशबोर्ड प्रॉपर्ली। सो इन केस में मैं डिस्पैच ग्रुप का यूज कर सकता हूँ। और क्या कंटेक्स्ट है मेरा, मैं चाहता हूँ कि वंस मैं ऑल 3 एपीआई कॉल्स आर कंप्लीटेड, ओनली देन लोड द एंटायर डैशबोर्ड। और समवॉट ऐसा कह लो कि लोड कह लो, या फिर मुझे वो तीनों एपीआई लोड होने के बाद मुझे उस स्क्रीन पे कहीं पे जाना है, कोई नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, तो मैं वेट करूंगा तीनों एपीआई कॉल कंप्लीट होने के बाद, फिर मैं एक नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा और वहां पे सारा डेटा लोड करके मैं दिखा दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके की चीज में डिस्पैच ग्रुप मेक श्योर करता है, जिसमें अगेन हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कैसे चीजें वर्क करती है, कैसे उसको हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है डिस्पैच ग्रुप का, कि वो आपको मेक श्योर कर रहा है कि आप डिसाइड करो आपके ग्रुप में कितने टास्क है, और उतने टास्क जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब खत्म हो जाएंगे तब वो आपको नोटिफाई करेगा। नोटिफाई कॉल बैक ब्लॉक रहता है उसमें, काइंड ऑफ ये एक फंक्शन कह लो, उस फंक्शन में आपको कॉल बैक मिलेगा, उस क्लोजर में या फंक्शन में कॉल बैक आएगा, और उस फंक्शन या क्लोजर में आप डिसाइड करोगे कि अब ओके मेरे सारे टास्क खत्म हो गए, अब आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, या जो भी आपको करना है आप करो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये डिस्पैच ग्रुप का एक फंडामेंटल वो है। उसमें और भी 2-3 वेरिएशन है, एक वेट करके भी चीज होती है, ठीक है, टाइम आउट वगैरह भी आप लगा सकते हो, ये भी चीज है। पर मैं बहुत पहले बेसिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्पैच ग्रुप का बेसिक आई होप ऑलरेडी आपको पता होगा, बट इनकेस नहीं पता है तो इतना अभी के लिए आप अंडरस्टैंडिंग रखो कि मुझे अगर मल्टीपल एपीआई कॉल करने हैं, अब मल्टीपल एपीआई कॉल ही नहीं है, मल्टीपल और भी कोई टास्क हो सकते हैं, तो पॉइंट ये है कि मल्टीपल टास्क मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, और मुझे मेक श्योर करना है कि जब तक मेरे सारे टास्क खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, या मुझे उन सारे टास्क खत्म होने के बाद कुछ मुझे परफॉर्म करना है। तो आपको डिस्पैच ग्रुप इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच यू कैन डू। इसके अगेन और भी तरीके हैं करने के, इसी बिहेवियर को अचीव करने के, पर अभी के लिए हम डिस्पैच ग्रुप पे बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज केस यू कैन से फॉर डिस्पैच ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे किसी कोई डाउट, जो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्पैच ग्रुप की जो है। कूल, ठीक है, हम लोग अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है रिलेटेड टू योर सीरियल क्यू, कॉन्करेंट क्यू। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन माय Xcode. Just a minute. ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट सेकंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन कर देते हैं शेयर। एक बार मुझे जस्ट कंफर्म करना वंस यू माय मतलब वंस माय स्क्रीन इज विजिबल। और इवन
इसमें वो इन्फिनिटी भी हो जाएगा, मैं आपको पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का ही शेयर करता हूँ तो बेटर रहेगा, पर उसमें आपको कंप्लीशन, चलो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट बहुत सारे टैब खुलने में, हाँ वेयर इज एक्सपोर्ट, नहीं वो कि क्रोम की कंटेक्स्ट में ही है वो, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से मैंने एक बार रीशेयर किया, जस्ट सेकंड हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, एक बार आप हम सब कर सकते हैं, स्क्रीन दिख रहा है, कूल थैंक्स। तो अभी हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं, और मैंने इवन एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ही कर दिया, बट हम व्यू डिड लोड में ही खेलेंगे, ठीक है। तो हमें तो मतलब नहीं है बाकी किसी चीज से भी सच, पर हम समझना चाह रहे हैं कि अगेन डिस्पैच वाली चीज को। तो लेट मी राइट सम कोड हियर। वेट, अब यहाँ वॉलेंटरली आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करना और बताना कि क्या आउटपुट्स होंगे, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये आउटपुट आ रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, राइट। तो विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, मैं बहुत बेसिक पे पहले जा रहा हूँ एक बार, लेट मी क्रिएट माय ओन क्यूबी। चलो ऑटो कंप्लीशन ठीक है। तो एक और जैसे हम ऐड करते हैं एक फॉर लूप, ठीक है। तो एक बार कोई बताना चाहेगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में, या कुछ रैंडम ऑर्डर आएगा, और रैंडम आएगा तो कौन सा रैंडम आएगा और कौन सा नहीं रैंडम आएगा, समथिंग कोई बोलना चाहेगा इस चीज पर? कुछ सबको दिख रहा है ना कोड? रन करने के पहले कोई इसको प्रेडिक्ट करना चाहेगा? Any- yeah. यस विक्रम, आप कहना चाह रहे हैं? Yes, I think for loop is running continuously, and the other the dispatch groups are executed simultaneously. We cannot identify the which one is so identify करके 0 से 10 बीच में आते रहेंगे उनकी काउंटिंग, इसलिए तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा, समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, क्योंकि ये एक चीज कर में रहा हम भी नहीं बताते हैं क्योंकि ये कॉन्करेंट वर्क करेंगे ना। हाँ ग्लोबल तो कॉन्करेंट है, ठीक है, और असिंक्रोनसली कर रहा है, और एक मैंने सीरियल क्यू भी यहाँ पे बना के रखा है, इसमें मैं एक और एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब बताओ एनीथिंग ऑन दिस सीरियल क्यू में Kushal, जी। I think go to export play. क्या? First of all, this 200 to 210 will be printed because this is totally on main thread. And after that, 100 to 110 will be printed because this is a main, sorry, this is a serial queue. And
after that 300 and 310 will be printed. See, we can these two are on serial queue, but these are asynchronous. So we can say that this will be this will get start like both the tasks will start, but the controller will be returned to the compiler immediately. But the order of printing will be 100 and 100 to 100 to 110 first, because like it will work in a FIFO, like in the order they have been dispatched to the serial queue. So 200 to 110, then 100 to 110, then 300 to 310. And the first and second, these two are totally on background threads, and they are also asynchronous. I have one question. क्या 0 to 10 या 50 to 60 पूरा नहीं, मतलब कोई भी एक नंबर पहले प्रिंट हो सकता है सीरियल क्यू के 100 या 300 के पहले प्रिंट हो सकता है? See here, the QoS is default. If it has been user interactive, then we can say that might have been printed before those 300, 310. I don't think this will be printed. I may be wrong, but from my understanding, 100 to 110, then sorry, first is 200 to 110, then 100 to 110, then 300 to 310, and there will be no order. प्रसून एक बार चैट में भी ये टाइप कर देना, वरना ऐसे याद नहीं रहेगा। जी जी अच्छा, wait. And there will be no order in 0 to 60. This will be totally random, I think, because they are concurrent plus asynchronous. Okay. तो 0 to 10 और 50 to 60 का रैंडम ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, ऐसा कहना है आपको, राइट? दोनों कॉन्करेंट असिंक है, पर सीरियल में 100 to 110 और 300 to 310 में काइंड ऑफ एक थोड़ा सीरियल क्यू है, तो एक डिपेंडेंसी होगी कि पहले टास्क 1 खत्म होगा फिर टास्क 2, काइंड ऑफ, राइट? There will be dependency, because it will be like see, 100 to 110 will be dispatched to the serial queue, and then 300 310 will be dispatched, but both will return the compiler. Like पहले 100 to 110 dispatch होगा और वो कंट्रोलर को अपना कंपाइलर को अपना कंट्रोल रिटर्न कर देगा, and then 300 310 will be dispatched, and then it will return its control to the compiler. But the execution will be in FIFO manner. So the first 100 to 110 was dispatched. That's why it will be printed first, then this 300 and 310. Cool. I think so. Yes. ठीक है, चलो फिर रन। और कोई कुछ कहना चाहता है? Anyone else? और प्रसून आप एक बार डाल देना आपका जो आप जी। Anyone else? तो फिर उसके बाद हम रन करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है और फिर उस पर आते हैं कि क्यों ऐसा बिहेव हो रहा है। कोई और? एनीवन? नहीं? ठीक है, तो फिर हम रन करते हैं इसको। सो लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। कंसोल में जाएंगे हम लोग। I have mentioned the last two might be totally random. Cool. तो 1 मिनट, प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो here is the output। अब आउटपुट देख के कोई कुछ कहना चाहेगा तो वो भी बताना मुझे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा आउटपुट क्यों आया। तो अभी जहां हम देख पा रहे हैं कि पहले 200 शुरू हो गया, पर इवन खत्म होने के पहले 0 भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज देखने वाली चीज है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 50 भी शुरू हुआ है बाद में, और पर ये जो बात हो रही थी सीरियल क्यू पे आते हैं पहले, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए। सीरियल क्यू में 100 पहले शुरू हुआ, फिर ये पूरा खत्म भी हो रहा होगा। कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये देखो 110, यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक खत्म हो गया आपका। 100 से 110 यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका 300 स्टार्ट हो रहा है और फिर 300 खत्म हो रहा है। ये तो क्लियर है, क्योंकि सीरियल क्यू तो वैसे ही बिहेव करेगा जो एक्सपेक्टेड है हमें। सीरियल क्यू में तो ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहने वाला है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी में ऑर्डर इधर उधर क्यों उस पर हम आते हैं। ये क्लियर है सबको, सीरियल क्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 इज एक्सपेक्टेड कि ये पहले शुरू होकर पहले खत्म हो जाएगा,
और उसके बाद ही ये शुरू होगा, जो कि अभी आपको दिख भी रहा है आउटपुट में। ठीक है, पहले 100 शुरू हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो 100 शुरू होके यहाँ पे खत्म हुआ 110 पे, और फिर 300 शुरू होके 310 पे लास्ट में खत्म हुआ। हाँ, बाकी और कोई कुछ कहना चाहेगा कि और ये जो रैंडम क्यों दिख रहा है, इसके पीछे कोई रीजन? एनीवन? Basically, this background thread was executed before. राइट, ये भी execute हो गया बीच में। हाँ, होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक बार और रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट बदलेगा क्योंकि रैंडम ऑर्डर आएगा कॉन्करेंट क्यू है, तो वंस अगेन विल रन, लेट्स सी। अब देखो इस बार क्या ऑर्डर आया। अब इस बार ऑर्डर 0 वाला पहले आ गया है, तो 0 वाला मतलब अगेन ये वाला ही पहले रन हुआ है, फिर इवन उसके बाद 100 रन हो गया, और ये जो ब्लॉक था जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो यहाँ शुरू हुआ है। तो कहने का पॉइंट है कि ये इसको कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, ये कोई मेन थ्रेड पे नहीं चल रहा है काइंड ऑफ, ये चल भी रहा है तो राइट। अगर ऐसा कुछ बट होता हाउ, लाइक कि 200 से 210 तो मेन थ्रेड पे चलना चाहिए था, आई थिंक। तो हाँ, थिंक तो सही है बट थिंक गलत मतलब भी है। व्यू ट्रेड लोड में है ना, तो लाइक लाइफ साइकिल मेथड्स मोस्ट प्रोबेबली मेन थ्रेड पे ही चलना चाहिए, बट तो दिस इज टोटली रैंडम। हाँ, रैंडम बिहेव हो रहा है, उस पर हम आएंगे। बट हाँ दर्शना, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? नॉर्मली तो ऑल दिस आर लेस प्रायोरिटाइज क्यू मेन से, and every block is with async mode. So in async itself, it could start, but we cannot define it when it will be finished. तो अगर कोई ब्लॉक स्टार्ट हो भी रहा है but it is having more time to execute the code, तो जो भी next async block आ रहा है that can start immediately, because जो dispatch queue global है that is serial, and जो serial queue है that is also serial. तो कोई भी ज्यादा ग्लोबल क्यों है? नहीं, ग्लोबल तो कॉन्करेंट क्यों है? अंदर जाके देख सकते हो, इसको प्रायोरिटी डिफॉल्ट दिया हुआ है बट इट्स कॉन्करेंट क्यू। और आई गेस जब तक हम डिफाइन नहीं करते तब तक क्यू सीरियल क्यू रहेगा। सीरियल क्यू रहेगा तो फिर सीरियल ऑर्डर तो फॉलो नहीं किया है, इसका मतलब ये कॉन्करेंट है। अगर सीरियल क्यू होता ना तो आपका 0 to 10 पहले खत्म होता, फिर 50 से 60 शुरू होता। नहीं, लाइक दिस कैन ओनली इज पॉसिबल जब हमने असिंक नहीं सिंक यूज किया होता। नहीं, सिंक असिंक पे भी मत जाओ, बात सीरियल कॉन्करेंट की हो रही है। तो ये तो क्लियर है कि कॉन्करेंट क्यू की तरह ही बिहेव कर रहा है। सीरियल क्यू होता तो फिर जैसे सीरियल क्यू तो फिर ऐसा बिहेव आना चाहिए था जो हमने अपना सीरियल क्यू बनाया, राइट? हाँ, खैर, यस इंडीड, राइट। तो हाँ प्लीज। तो इसमें ये है कि पहले तो हमारा जो सीरियल क्यू है, जो नॉर्मली तो जो अभी ये सीक्वेंस है कोड का, पॉसिबल है कि जो सीक्वेंस है कोड का उसके बेसिस पे ही टास्क स्टार्ट होंगे। और क्योंकि असिंक है तो कोई भी टास्क कोई भी ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा टू स्टार्ट। वो दे आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिविजुअली। और जिस मैनर से कोड लिखा हुआ उसी बेस पे कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, और प्रिंटिंग भी उसी तरह से स्टार्ट होंगे। बट क्योंकि रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता रहेगा तो कौन कभी खत्म होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, बट मुझे अभी तक इस चीज का आंसर नहीं मिला है प्रश्न, और मैं कहूंगा ये आप लोग आज खुद इस पे थोड़ा R&D करना कि क्यों ये वाला चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, पहले एग्जीक्यूट हो जाता, और ये फिर भी बाद में पहले ग्लोबल कॉन्करेंट क्यू के स्टार्ट हो गए। इस पे आप थोड़ा R&D करके कल इस पे हम डिस्कस करेंगे, पर ये आप एज अ होमवर्क काइंड ऑफ ले सकते हो आज का असाइनमेंट, ठीक है। बट अगेन हम सीरियल क्यू से क्लियर है। इसमें एक चीज क्लियर, ये ध्यान दो, सीरियल क्यू हमारा क्लियर है तो उसने ऑर्डर मेंटेन किया। अभी भी देखो मैंने सेकंड टाइम रन किया है तो भी ये क्लियर है कि यहाँ पे 100 स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और ये जब तक खत्म नहीं होता जब तक ये दूसरा वाला सीरियल क्यू 300 वाला स्टार्ट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो 100 शुरू हुआ, फिर ये पूरा 100 का जो 110 यहाँ पे दिख रहा है ये खत्म हुआ, उसके बाद ही फिर 300 वाला शुरू हो रहा है।
तो ये हमेशा आपको रहेगा, चाहे मैं कितनी बार भी रन कर लूं, पर ये ऑर्डर इधर उधर नहीं होने वाला है। मतलब इन दोनों की डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सबको अभी इग्नोर करो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियल क्यू के जो 2 ब्लॉक रखे हैं यहाँ पे मैंने, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ, दैट इज लाइक माय सीरियल क्यू ब्लॉक 1। तो मैं इन दोनों ही कंटेक्स्ट में इसमें एक मार्क दे दूंगा, ठीक है। मैं इनकी कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये और जो ये है मेरा, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि किसी को? तो बोलो पहले, इतना क्लियर है? तो ये आप कितनी बार भी रन कर लो, सीरियल क्यू तो अपना ऑर्डर मेंटेन करेगा और वो बीच में स्विच नहीं करेगा। मतलब वो जब तक ये टास्क खत्म नहीं हो जाता तब तक ये टास्क शुरू भी नहीं होगा, जो कि आप आउटपुट में देख भी सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। एनीवन हैज डाउट विद दिस सीरियल क्यू 2 ब्लॉक्स, सीरियल क्यू ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 फॉर आउटपुट 100 to 110 एंड 300 to 310? इस पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले, फिर हम दूसरे पे आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सबको? तो सीरियल क्यू तो अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अब ग्लोबल क्यू, तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्यू में विच इज लाइक अ कॉन्करेंट क्यू, कॉन्करेंट क्यू में ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। अर्जुन क्या बोल रहा है? ऑल्सो आफ्टर 210 देन 300 विल स्टार्ट। ओके, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? लेट्स सी, आफ्टर 210 300 विल स्टार्ट, ऐसा हो रहा है क्या हर बार? तो क्यों हो रहा है अर्जुन, एक बार बताएंगे आप क्या रीजन है इसके पीछे? Because that is running in the same thread, right? After that, after 210 only, we are starting in 42 line async, right? So it should already have completed printing 210. Then only the 40-second line. 210 300 will start. Okay, Yeah. Because of key 200 is like on same thread. Yeah, Yes. only the 42 line will execute only after that for loop of 37. हाँ, कह सकते हो, या दिस इज राइट। तो एक बार इसको कंफर्म करते हैं, हम फिर से चलाएंगे, लेट्स सी कि इस मतलब ये हमेशा स्टेबल है चीज या फिर अलग अलग हो रहा है। लेट्स सी, फिर से मैं रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। तो हाँ, ये पॉइंट अर्जुन का आप समझ पा रहे हो, बाकी लोग की ये बात कि 200 ये 210 के बाद ही वो स्टार्ट होगा। अभी देखो फिर से आउटपुट आएगा, लेट्स सी। अभी 200 इवन शुरू हो गया, 100 भी शुरू हुआ, बट एट दी एंड हम पहले ये चेक करेंगे 210 कहाँ पर है। 210 यहाँ पर, उसके बाद ही 300 आ रहा है। हाँ, तो ये चीज क्लियर है। और ये अर्जुन गुड पॉइंट आपने अच्छा पकड़ा। तो इस पे किसी को डाउट है या समझ गए? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वैसे ये चीज। इस ब्लॉक के बाद ही ये ब्लॉक शुरू होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? एनीवन? और ये आप आउटपुट में देख सकते हो, जब तक 210 वाला मतलब पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक 300 शुरू नहीं हो रहा है। अगर और आपको कंफर्म करना है या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से चलाएंगे। एनीवन कंफ्यूजन? फिर से देखो, फिर से चलाया तो इस बार ये देखो आप, इस बार 200 अगेन यहाँ पे खत्म हो गया 210 और उसके बाद 300 शुरू हुआ है। ठीक है, तो हर बार आप ये हर बार ही देख सकते हो, ये कंसिस्टेंट रहेगी चीज। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट में चल रहा है उसके ही कंटेक्स्ट में ये पहले ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी और ये ब्लॉक आई पिक्चर में बाद में रहा है। तो कहने का पॉइंट ये है कि पूरा खत्म होने के बाद ही तो लाइन ऑफ कोड इधर जाएगा, वरना तो जाएगा ही नहीं। ये तो कोई सिंक असिंक के अंदर नहीं है, राइट? अगर इसको मैं असिंक के अंदर डाल दूं तो बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज पर हम आएंगे अभी, पर अभी ये कोई सिंक असिंक के अंदर नहीं है, ये नॉर्मल कोड है। नॉर्मल कोड है तो ये ऑब्वियसली पहले रन होगा फिर ही इधर आएगा, राइट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले 200 से 210 पूरा प्रिंट होने के बाद ही 300 आपको दिखेगा, चाहे आप कितनी बार भी रन कर लो। ये आप आउटपुट में देख सकते हो, 210 इधर, उसके बाद ही 300 स्टार्ट हो रहा है। तो दो चीज हमारी क्लियर हुई कि सीरियल क्यू की इंटरनल डिपेंडेंसी प्लस ये अपना नॉर्मल, इसको मैं कहूंगा नॉर्मल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि हमारा सीरियल ही होता है, नॉर्मल जो बिहेवियर है, राइट? जब भी हम कोई कोड लिखते हैं सीरियल एग्जीक्यूट होता है कोड, तो उसी को ये बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। तो सीरियली बिहेव फॉलो कर रहा है, मतलब ये तो क्या असिंक ब्लॉक में चले गए तो इनका बिहेवियर तो असिंक्रोनसली हो गया, पर जो बाकी नॉर्मल कोड है वो तो सीरियली एग्जीक्यूट होगा। तो इन ब्लॉक्स भी ये तो काइंड ऑफ असिंक में चले गए, पर द पॉइंट इज कि ये ब्लॉक जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो इस लाइन पे आएगा भी नहीं। ये तो क्लियर है आपको? Until and unless this 38, 39, 40 is not completed, line number 43 will not execute at all. Right? Any concern? इस पे anyone?
या थम्स अप कर सकते हो अगर ये बात क्लियर हो रही है। एनीवन क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज को भी मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ। सो दैट इज द पॉइंट इज कि ये फॉलो द सीरियल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो भी है, बट द पॉइंट इज कि ये मैं इसमें थ्रेड वाला चीज इसमें कुछ मैं बोलूंगा भी नहीं, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन वाला चीज। तो अगर मैं इसको नॉर्मली लिख रहा हूँ तो ये नॉर्मली ट्रीट होगा, नॉर्मली ट्रीट में ऑब्वियसली पहले खत्म होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आई थिंक नो कंफ्यूजन एज सच, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो आप क्लियर कर सकते हो अभी के अभी, ठीक है। अब आपके बचा क्या आउटपुट फिर? दिखाना कुशल। आउटपुट हाँ देख लीजिए, ये आउटपुट। So in 100 to 110 and what is below 100 110 in code? 200. Okay. Yeah. देखो एक बात, एक सिंपल बोलूंगा मैं, सिंपली जब भी आप असिंक्रोनस ब्लॉक में कुछ डाल रहे हो तो आपने कंपाइलर को देखो, कंपाइलर पे आते हैं एकदम बहुत बेसिक ऑफ कोडिंग, ठीक है। बेसिक ऑफ कंपाइलर, कैसे कोड रन होता है, कोड कैसे रन होता है। व्यू डिड लोड पे कॉल आएगा, फर्स्ट लाइन नंबर 16 पे ये बनाएगा क्यों, फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आती क्या होगा, जब लाइन नंबर 18 पे आएगा वो, तो आपने असिंक्रोनस में डाल दिया। असिंक्रोनस जैसे मैंने वही बोला था चाय कॉफी वाला एग्जांपल, आपने उसको चाय कॉफी पकड़ा दिया, पर आप बोल रहे हो कि असिंक्रोनस है भाई, तो प्रायोरिटी भी ऐसे कुछ नहीं है भाई, और आप उसको सिंक भी नहीं लगा, तो कोई ब्लॉक नहीं किया है। आपने उसको बोला कि जब तेरे को टाइम मिले मर्जी हो तब कर लेना भाई, समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि आपने उसको बोल के छोड़ दिया, तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है सच, तो ये आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट ये, कंपाइलर आएगा, ये कोड ब्लॉक को उठा के इसमें डाल देगा ग्लोबल इसमें क्यू में, और आगे बढ़ जाएगा। फिर इधर आएगा, फिर इधर भी देखेगा कि असिंक लगा हुआ है, इसका मतलब प्रायोरिटी नहीं है, कुछ कोई ब्लॉकेज नहीं है सच, तो इस पूरे ब्लॉक को उठा के अगेन इसमें डाल देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। पर इसमें अगेन आप ये देख सकते हो कि काइंड ऑफ ये टास्क पहले शुरू होना चाहिए और ये बाद में, शुरू की कह रहा हूँ, खत्म क्या नहीं। तो अभी देखते हैं आउटपुट में 0 50 के पहले आ रहा है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे 0 इधर है और 50 इसके पहले आ गया है, तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही फ्लिप कर दिया इन्होंने। इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा कि ग्लोबल क्यू स्टार्ट ऑफ ऑर्डर मेंटेन नहीं किया काइंड ऑफ? This is fine because it will have multiple threads. So no, like these will be executed on different threads. We can never predict. कूल, हाँ दैट मेक सेंस, ठीक है। Can we just comment this to global tasks and let's print these 3 serial things? Sure. ठीक है, लेट मी रन अगेन। अब देखो 200 स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो सीरियल क्यू वाला ब्लॉक चल रहा है आपका, फिर 200 भी चल रहा है। बट द पॉइंट इज कि हमारा पॉइंट ये जब तक ये खत्म नहीं होगा 300 स्टार्ट नहीं होगा, जो आप देख सकते हो 210 के बाद ही 300 स्टार्ट होगा। ये देखो यहाँ पे अगेन सेम चीज दिख रही है जो कि सही है, कूल। और सीरियल क्यू का भी ये ऑर्डर आप देख सकते हो, जब तक ये 110 खत्म नहीं होगा तब तक ये शुरू नहीं होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 110 के बाद ही आपका 300 शुरू हो रहा है। मतलब जब तक ये मेरा ब्लॉक 1 खत्म हो रहा है 110 पे, उसके बाद ही मेरा ये वाला ब्लॉक 300 वाला शुरू होगा। दोनों सीरियल क्यू के अंडर है, राइट। तो सीरियल क्यू तो So ऑर्डर like I have one doubt in the first and in second task. Will the order be fixed every time? Like 100 will start before 200? नहीं, इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। ये तो कंपाइलर का अगेन ये आपको हमेशा रैंडम मिलने वाला है कि पहले ये शुरू हो या ये शुरू हो, इस पे आप नहीं कह सकते हो। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमेशा पहले शुरू होके खत्म होगा, फिर ये शुरू होके खत्म होगा। ये श्योर है अपना, और ये मेरा श्योर है कि ये पहले शुरू होके खत्म होगा और फिर ये शुरू होगा। ये दो चीज हम यहाँ से एकदम मतलब श्योरली बोल सकते हैं। बट यू कांट से you are saying कि 110 पहले खत्म होगा 210 से? नहीं, मैं इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का तो रैंडम है। मैं कह रहा हूँ ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड ब्लॉक इनकी डिपेंडेंसी है, that is fine. और मैं कह रहा हूँ सेकंड चीज की सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक में डिपेंडेंसी है।
सेकंड ब्लॉक हमेशा पहले खत्म होगा फिर थर्ड शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट हाँ, तो ये आप कह सकते हो। बाकी आप हर बार रन करो, आपको रैंडम ऑर्डर मिलेगा इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है, तो ये हमेशा रैंडम बिहेव करेंगे आपस में एक दूसरे के लिए। सो रैंडम स्टार्ट एंड रैंडमली एंड। हाँ, मतलब वैसे तो एक्सपेक्ट है कि ये पहले शुरू हो जाए, बट अगेन अभी मल्टी कोर है तो कोई और भी शुरू हो सकता है पहले, जैसे हमने ऊपर भी देखा ग्लोबल क्यू में। पर ये जहाँ पे डिपेंडेंसी एक्चुअल क्रिएट हो रही है वहां पे आप कह सकते हो क्योंकि ये तो श्योर है हम लोगों को, ठीक है। तो अब जब फर्स्ट सेकंड में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर बोलना भी गलत होगा वहां पे, राइट। Okay, one more doubt. This serial queue is our own custom serial queue, right? हाँ, our own. That Yes. we created. And the second one, which is printing 200, that is, in this case, the serial queue is not our generated serial queue. So, No. So basically, what I want to say is there any dependency between user generated serial queue or system generated serial queue? Any priority between those two? नहीं, देखो, इफ अभी जैसे वी आर नॉट यूजिंग यहाँ पे मेन क्यू, तो मेन क्यू तो यहाँ पे कंटेक्ट में नहीं है, वो आता है तो चीजें अलग होती हैं। बट अभी आपका नॉर्मल क्यूज है ये काइंड ऑफ, राइट। तो इसमें कोई डिपेंडेंसी like this 200 is not on the main queue. This will be on the main queue, na, right? Because this is not our custom queue. दिस इज लाइक कि आपका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन जिस थ्रेड पे है उसी पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इवन अभी जैसे मान लो मैंने कोई एपीआई कॉल नहीं लगाया यहाँ पे, पर मैं चाहूँ तो उसको मैं दूसरे थ्रेड या क्यू पे भी लेके जा सकता हूँ, राइट। पर अभी के लिए इसे कुछ भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो क्यू चल रहा है, अब आप उसको मेन क्यू कह लो या जो भी डिफॉल्ट क्यू चल रहा है उस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और पर अब पॉइंट यही है, अगेन अगर हम ये सिंक से इसके अलावा अगर चीज देखें, जो मैंने बोला नॉर्मल ये सीरियल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करेगा। सीरियल कोड का मतलब है कि नॉर्मल सीरियली कोड एग्जीक्यूट होता है, तो लाइन बाय लाइन जाएगा, तो ये तो पहले एग्जीक्यूट होगा तभी ये स्टार्ट होगा, राइट। मतलब इस लाइन पे आएगा ही तब कंपाइलर, हाँ, गॉट इट। राइट। ठीक है, ये सबको क्लियर है अभी जितना हमने देखा। और जो एक कंसर्न मैंने बोला, जैसे वो आप एज असाइनमेंट लो कि वो ग्लोबल क्यू वाला चीज, और अगेन ये वाला क्वेश्चन था कि ये इसके पहले ये कैसे शुरू हो रहा है, जो प्रश्न से हमारा डिस्कशन हुआ, इसको आप लोग थोड़ा खुद R&D करके आना कि व्हाई दिस हैपनिंग। रीना, यू हैव रीड समथिंग? हाँ सर, मैंने जैक में वो क्वेश्चंस डाला है ना, तो Yeah, I can copy paste here. And difference between work execution and work in queue in context to dispatch queue. Okay, इस पे हम आएंगे, कल लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, अभी ऑलमोस्ट वी, ठीक है। लेट मी नोट डाउन दिस क्वेश्चन, copy paste, so we can say the main queue serial queue which by default works in sync manner, कह सकते हो, ठीक है। मतलब ये चीज ध्यान रखो, हाँ मेन क्यू तो सीरियल क्यू है ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अभी जैसे आप देख रहे हो ये जो कोड है आपका, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड है, जो मेरा ब्लॉक 2 है, यहाँ पे ब्लॉक 2 नहीं कहूंगा, मतलब इसको कह लो ये नॉर्मल जो ब्लॉक है मेरा, ये एक काइंड ऑफ सीरियल ऑर्डर ही फॉलो करेगा एक सीरियल क्यू के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका मेन क्यू है वो तो सीरियल क्यू है, तो सीरियल क्यू तो सीरियल ऑर्डर फॉलो करेगा ही है। और मैं तो कह रहा हूँ इसमें क्यू वाला कंटेक्स्ट भी हटा दो, क्योंकि किसी भी क्यू के अंदर हमने मैसेज डाला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट अपना कोड जैसे चलता है उस तरीके से आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ही शुरू होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। यस दर्शना। in that case 100 will first print and then any onwards 200 will start. नहीं, 100 को आपने असिंक में डाल दिया ना, तो वो रैंडम बिहेवियर मिल सकता है वहां पे आपको। आपने कोई ब्लॉक नहीं किया और ना कोई डिपेंडेंसी इसके बीच में और इसके बीच में। जब तक मैं कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता हूँ या मैं कोई प्रायोरिटीज देके जानबूझ के उसको बोलता हूँ कि ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी है, तब तक आपको रैंडम बिहेवियर मिलेगा या मिलने के चांसेस हैं। Any block can start at any time. The block will start at 31st line and 38th line. 31st and 38, हाँ ठीक है। आप देख लेते हैं एक बार, 2-3 बार रन करते हैं, लेट्स सी कि बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर उस 200 से 210 वाली जो लूप है उसको हम ऊपर कर ले एट 30th लाइन, फिर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली, फिर तो ये हमेशा पहले खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूट होगा। हाँ। अब
तब तो फर्क पड़ेगा, राइट। अभी पहले आउटपुट देखते हैं हम लोग। 200 फिर भी पहले स्टार्ट हुआ, एक बार और कंफर्म कर, क्योंकि इसमें रैंडमनेस दिख जाती है, पता नहीं, डिपेंड्स थोड़ा सा। स्टिल 200, ठीक है, फिर वो ये पिक कर रहा है पहले, बट द पॉइंट इज की डिपेंडेंसी नहीं है। द पॉइंट इज की जैसे एक सीरियल क्यू आपने बना के रखा, उसमें असिंक पे हमने ब्लॉक डाल दिया, और उसके बाद वो डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करने यहाँ पे आ गया, तो इसलिए 200 आपको पहले दिख रहा है, फिर 100 शुरू हो रहा है, ठीक है। बट अभी जैसे आप बता रहे हो, इसको अगर मैं ऊपर ले लूंगा तो फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है या कोई रैंडमनेस नहीं दिखेगी इससे सब। ये अगर मैंने ऊपर ले लिया तो हमेशा फिर 200 पहले पूरा ये ब्लॉक खत्म होगा, फिर ही ये शुरू होगा, फिर ये तो फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें कोई रैंडम ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप इसको रन कर सकते हो। लेट्स सी हियर, तो पूरा 200 पूरा खत्म होगा पहले, फिर 100 पूरा खत्म होगा, और सब सीरियली चलेगा क्योंकि आपको रैंडमनेस बची नहीं इस कोड में, और फिर 300 सेल के 300 खत्म होगा, और ये आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। अभी जैसे हमने लिखा है, इसमें कुछ अलग भी नहीं आने वाला है, एवरी टाइम इट विल सेम। सी 200 अगेन 210, देन अगेन 100 से 110, एंड अगेन 300 से 310। कूल। तो ये तो आपका नॉर्मल कोड है, ये तो अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर कर दोगे, कहीं भी लगा दोगे, तो ये तो उस ऑर्डर को फॉलो करने वाला है। तो अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर ही डाल दिया इसको, तो फिर ये दैट इज वेरी, मतलब श्योर, प्रीटी श्योर कि ये पहले खत्म होगा एग्जीक्यूट होके, उसके बाद ही लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, राइट। फिर से अनडू कर देता हूँ उसको। कूल। तो अभी के लिए हम लोग आज यहाँ रुक सकते हैं। मैं क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट और नोट्स भी आप लोगों को शेयर करूंगा बाय एंड ऑफ द डे मोस्टली। और आप लोग का काम है, एक यहाँ पे आज क्वेश्चन आया है कि ग्लोबल क्यू का जो चीज है कि जो ये वाला क्यू उसके पहले शुरू हो रहा था, ये एक हमारा कंसर्न था, ठीक है। तो वो उस पे यू कैन R&D ऑन। एक बार हम फिर से रन करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, रन इट अगेन। ठीक है, अभी आउटपुट देखोगे आप तो 50 पहले शुरू हो गया एंड एक मिनट। कुशल, आप जो सीरियल क्यू वाला कोड है उसको कमेंट कर सकते हो, सो दैट इट कैन प्रिंट, आई मीन थोड़ा क्लियर प्रिंट आउट जो हो रहा है वो क्लियर हो जाए। हाँ, सीरियल वाला ठीक है, कमेंट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है एक्चुअली। तो क्या सीन हो रहा है कि पहले आपने ये ग्लोबल क्यूज में डाल दिए, पैरेलली ये भी चल रहा है कोड आपका, और ये स्टार्ट तो हो गया बट ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जैसे मैं इसको ऊपर ले लूंगा तो फिर ये खत्म होने के बाद ही आगे चीजें होंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी चीज ये नीचे है ब्लॉक, तो इवन ये स्टार्ट हो रहा है पर खत्म होने की गारंटी नहीं है। और ये अभी भी मुझे लगता है कि डिपेंड्स, अगर कल को मान लो ये पहले पिक हो गया तो ये पहले भी हो सकता है रन, ठीक है। देयर इज सम चांसेस ऑफ रैंडमनेस। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब हमारा क्वेश्चन ये था कि इसमें ना ये ऑर्डर मेंटेन नहीं किया था। अभी तो जैसे 0 आ रहा है ये और 50 आ रहा है, बट पहले 50 भी आ रहा था। लेट मी रन अगेन। पहले 50 आ गया। हाँ देखो, क्वेश्चन एक ये था, इस पे आप लोग एक बार देखना कि अभी जैसे अभी आउटपुट आप देख रहे हो, पहले 50 वाला ब्लॉक शुरू हो गया, फिर ये शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे यू कैन जस्ट योर रिसर्च यू कैन डू, ठीक है। ग्लोबल क्यू में मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तो मेंटेन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये आप एक बार देख के आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये स्निपेट्स में देता हूँ, और कल हम और क्वेश्चंस देखेंगे, और कल हम लोग डिस्पैच बैरियर, डिस्पैच सेमाफोर और वो सब चीजें भी देखेंगे जो पार्ट ऑफ जीसीडी और एनएस ऑपरेशंस भी, ऑपरेशन के, ठीक है। और कुछ और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो नॉर्मली इंटरव्यूज में अगेन पूछे जाते हैं, वो कल क्वेश्चन सेट ऑफ हम लोग कल रखेंगे। कुशल, आई हैव वन क्वेश्चन कि हम बहुत यूज करते हैं थ्रेड या क्यू, मतलब तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कभी हम बोलते हैं कि ये मेन थ्रेड पे, कभी बोलते हैं मेन क्यू पे, लाइक आर दे सेम, दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं या कुछ डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस है, डिफरेंस है, पर मैं चाहूंगा आप खुद से एक बार इसको
आपने कभी गूगल किया है चीज कि इसमें क्या मिलता है आपको, बेसिक डेफिनेशन ऑफ थ्रेड वर्सेस क्यू? नहीं, What do you मैंने think? क्यू Right, तो so वही एक हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आई गेस मतलब डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्यू क्या काम कर रहा है? क्यू आपके कुछ ब्लॉक्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है? Correct. आपने टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 डाल दिया और फिर वो उसको उसी ऑर्डर में काइंड ऑफ एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर रैंडम ऑर्डर में, डिपेंड्स की सीरियल क्यू है कॉन्करेंट क्यू है। और थ्रेड क्या करता है? थ्रेड में भी एग्जीक्यूट करता है जो टास्क को क्यू होल्ड करता है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने गूगल नहीं किया। नहीं, ओके, तो एक तो पहले गूगल भी करना, पर कोई इस पे आंसर करना चाहता है? कोई और? एनीवन? थ्रेड वर्सेस क्यू। प्रसून? Thread is like actual, like actual path of execution for the code. कोई भी code execute हो रहा है तो वो thread पे होगा. And queue is something you can understand as a pipeline. So you dispatch the work in that pipeline. So that basically a queue can can contain multiple threads also. आप ऐसा कह रहे हो Or क्यू? you can say it's a high level abstraction for the threads. ओके, तो प्रसून आपका ऐसा कहना है कि क्यू एक कंटेनर है जिसमें मैं कई सारे टास्क रख के उसको एक पाइपलाइन की तरह बिहेव हो रहा है वो, और थ्रेड हाँ, मेरा like एक not exactly the container, but we can assume it as. हाँ, ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है इस पे? एनीवन एल्स? थ्रेड वर्सेस क्यू। सेम, जैसे शेड्यूल करो, एक क्यू बनाओ जिसमें सारे टास्क ऐड करो एंड एग्जीक्यूट दिस टास्क ऑन अ थ्रेड, वेदर इट इज अ मेन थ्रेड और अदर ग्लोबल थ्रेड, एनीथिंग। अच्छा, तो एज ऑफ नाउ में हम लोग मेन थ्रेड तो चलो समझ, पर आप फिर खुद से थ्रेड्स बनाते हो? अपन तो क्यूज बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं हम लोग डे टू डे में नॉर्मली। जैसे हम लोग जीसीडी से एग्जीक्यूट करते हैं कि हम लोग को ग्लोबल थ्रेड में एग्जीक्यूट करना है या मेन थ्रेड में करना है, और कोई भी किसी भी थ्रेड में करना है तो कौन से टास्क कौन से मैनर में, मतलब कौन सी प्रायोरिटी पे ऐड करना है, एग्जीक्यूट करना है। नहीं देखो, ये क्यू के कंटेक्स्ट में तो क्लियर है जो हमने आज भी देखा, और अभी भी क्वेश्चन का आंसर आई थिंक नहीं हुआ है। थ्रेड वर्सेस क्यू में मेजर डिफरेंस क्या है? आई थिंक क्यू इज टाइड टू अ थ्रेड, मतलब क्यू के वो टास्क हैं जो थ्रेड पे एग्जीक्यूट होंगे। क्यू के वो टास्क जो थ्रेड पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। मैं कहूंगा आज आप लोग जाके एक बार पढ़ो ये चीज, फिर कल इस पर हम बात करते हैं, ठीक है? ओके। मैं एक चीज बोलूंगा, देखो आप गलत वे में मत लेना, बट अगर ऐसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप खुद से पहले एक बार उसको चेक करो, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है? तो उससे आपका भी थोड़ा सा एक्चुअली दिस इज गुड फॉर यू ऑल्सो, राइट? इस तरह की चीजें। और बाकी हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी कभार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, नॉट एवरी टाइम, बट नॉर्मली जितना मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज दिए तो जीसीडी के केस में आउटपुट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, या सीरियल कॉन्करेंट का डिफरेंस पूछ लिया, या सिंक से कंफ्यूज करा, इस तरह क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को मिलते हैं आज के इंटरव्यूज में। और आगे अब अभी हम और आएंगे, जो कि डिस्पैच ग्रुप का भी आज हमने कुछ लिया नहीं है, वो होगा। फिर हम एनएस ऑपरेशंस पे आएंगे, क्यूएस वाले भी क्वेश्चन लेंगे, आज हमने नहीं लिया, कल लेंगे हम। और उसके अलावा फिर आपका डिस्पैच बैरियर, सेमाफोर वगैरह वो भी सब रहेगा, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और डिस्पैच वर्क आइटम हेमानी ने जो क्वेश्चंस पूछा ना, वो अभी इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा, मतलब मैंने 5-6 जगह पे वो क्वेश्चंस है ना वो फेस किया है, क्यू और थ्रेड के बीच का डिफरेंस। तो फिर आपने इसको गूगल किया होगा? हाँ सर, किया था, बट लाइक वो लोग ऐसे कंफ्यूज करते हैं ना इंटरव्यू के टाइम के, मतलब हाँ, तो वो कंफ्यूज करते हैं, राइट? उनका काम ही है कंफ्यूज करना। वो तो जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे कैंडिडेट को, ये देखने के लिए कि अगर कैंडिडेट थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस का डाउन हुआ, इसका मतलब उसका क्लैरिटी नहीं है, और उनको बस यही चेक करना होता है। तो वहां पे अगेन यही, अगर हमें क्लैरिटी है उस चीज पे तो हम लोग उस पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पर अगर हमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो वो सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि ये डाउटफुल है। उन लोगों का कुछ रहता है कि हम कब क्यू यूज करें, कब थ्रेड पास करना है, वो सब क्वेश्चंस रहता है, तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बेसिस तो हम कल के सेशन में ये वाला क्लियर करें तो कल हम ये क्लियर करेंगे, पर आप लोग भी अपने एंड से एक बार पढ़ के आइएगा, ये हम लेंगे इस चीज को कल, ठीक है? डेफिनेटली, ठीक है। आज जितना हमने, मैं अगेन थोड़ा सा इस पे आ जाऊं वापस और फिर हम रैप अप करेंगे। आज हमने सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी है
कि बेसिक आपका सीरियल कॉन्करेंट क्यू क्या है, सिंक असिंक क्या होता है, डिस्पैच ग्रुप क्या होता है, और क्यूएस में कुछ 4-5 टाइप के वो है प्रायोरिटी, वो क्या होती है। इतना हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा है। और हमने क्वेश्चन जो लिया वो सिर्फ हमने आज कॉन्करेंट और सीरियल क्यू और सिंक असिंक पे लिया। हमने डिस्पैच ग्रुप का टच नहीं किया, हमने क्यूओस को भी टच नहीं किया क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इतना ही किया आज, बाकी कल करेंगे। जो भी आगे जो चीजें बची हैं वो कर लेंगे हम, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस और रिलेटेड टॉपिक्स। तो जितना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगेन अगर हम इन शॉर्ट समझे तो सीरियल की हमेशा ऑर्डर मेंटेन करेगा, इस बात को ध्यान रखो। सीरियल की इज लाइक योर कि आप खाना खाने जाते हो लंच पे, उससे आप रिलेट कर सकते हो। जब लंच पे जाते हो तो नॉर्मली आप लैपटॉप लेके नहीं जाते हो, राइट, या नॉर्मली खाना खाते हुए कोडिंग नहीं करते हो, क्योंकि आप खाना खाते हो पहले फिर कोडिंग करते हो, राइट। इस तरीके से ले सकते हो। तो द पॉइंट इज कि इन सीरियल की एवरी टाइम अनटिल अनलेस आपका टास्क 1 फिनिश नहीं होता तब तक टास्क 2 शुरू भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। कॉन्करेंट क्यू में ऐसा नहीं है। कॉन्करेंट क्यू इज लाइक योर चाय कॉफी वाला एग्जांपल। एक बार किसी ने आपको चाय कॉफी दी, आप वो चाय कॉफी साइड में रख के भी अपना काम भी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, एंड देन आप चाय भी पी रहे हो बीच बीच में, राइट। इस तरीके से कॉन्करेंट क्यू वर्क करता है। और सिंक असिंक में मेजर डिफरेंस क्या है, सिंक आपका एक ब्लॉक कर देता है, एक लॉक लगाना कह लो, सारा फोकस वहीं पे आ जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं होता कहीं कुछ और होगा नहीं, वो पूरा ब्लॉक कर देगा सिस्टम को। इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। और असिंक बोल रहा है कि कुछ भी ब्लॉक नहीं करना है, तुम अपना काम करते रहो, पर एक ये काम भी है, इसको देख लेना भाई, जब टाइम मिले, जब रिसोर्स मिले, तब इसको तुम पैरेलली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर लेना। तो ये फर्क है सिंक असिंक में। तो जब भी हम असिंक यूज करते हैं तो कंपाइलर रिटर्न हो जाता है एट द सेम टाइम, और सिंक में वो रिटर्न ही नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा और सिंक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने बैठ जाएगा वो, और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता आपका कंपाइलर वहीं अटका रहेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इतने ही आज हमने टॉपिक्स लिए हैं। और डिस्पैच ग्रुप आपका मेन काम क्या कर रहा है, डिस्पैच ग्रुप का काम ही है कि ग्रुपिंग्स करो, और ग्रुपिंग में आपका कोई डिपेंडेंसी है या फिर आपको मेनली डील करना है कि जब ये सारे मेरे टास्क या मेरे एपीआई कॉल्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए डिस्पैच ग्रुप इज हाईली रिकमेंडेड। तो वो उस केस में डिस्पैच ग्रुप यूज होता है। कल हम उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे डिस्पैच ग्रुप के। और बाकी आपका क्यूओएस है, जो एप्पल ने बोला कि भाई तुम अगर अपना कोई क्यू वगैरह बनाते हो तो प्रायोरिटीज दो, तो हमें समझेगा कि क्या प्रायोरिटी, तो उस हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ओएस उस हिसाब से हैंडल करेगा। जिसमें हमने देखा कि टॉप प्रायोरिटी में आपका यूजर इंटरेक्टिव है, फिर वो यूजर इनिशिएटेड, फिर आपका एक और क्या, थर्ड क्या था, क्या था बताएंगे कोई? यूटिलिटी एंड द लास्ट वन इज बैकग्राउंड। तो इसमें हमने एक एक यूज केस देखा, और भी यूज केस हो सकते हैं, आप खुद भी अपना थोड़ा R&D कर सकते हो। तो मेन चीज है कि यूजर इंटरेक्टिव को हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए रखें कि वो इन्वॉल्व है अपडेट यूआई के साथ। अगर यूआई के साथ अपडेट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यूआई का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो दैट इज अगेन हमेशा ध्यान रखो, ओएस की प्रेफरेंस ही है कि यूजर को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देना हो। बेस्ट से बेस्ट का मतलब होता है कि यूआई लैग नहीं होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। और वो अगर देना है तो उसके लिए प्रायोरिटी आप वहां पे सेट कर रहे हो उस क्यू की। ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो यूजर इनिशिएटेड वाला चीज, उसमें ऐसा है कि जैसे मैंने लोड मोर वाला एग्जांपल दिया आपको कि हाँ मतलब बहुत एकदम राइट अवे अर्जेंट नहीं है, पर सेकंड अर्जेंट पे आ जाता है वो काइंड ऑफ, कि अगर वो थोड़ा भी यूजर अगर स्क्रॉल किया तो फिर उसके बाद उसका डेटा मिलना चाहिए उसको राइट अवे, जितना एज अर्ली एज पॉसिबल। वरना ऐसा नहीं कि लोडर ही घूम रहा है और बेचारा वो वेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी पे यूजर इनिशिएटेड वाले केस को हम यूज करते हैं। थर्ड प्रायोरिटी आपकी यूटिलिटी वाली, जिसमें आपको पता है कि ओके यूजर को ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसको दिख रही है प्रोग्रेस, जिसमें वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ फाइल डाउनलोडिंग, जिसमें यूट्यूब का एग्जांपल ले लो या नेटफ्लिक्स का, जहां पे आप डाउनलोड दबा देते हो, डाउनलोड शुरू हो जाती है, पर आप और भी चीज अपने आप में कर सकते हो, पर आपको वो डाउनलोडिंग भी दिख रही है और आपका ध्यान भी उधर कि जब कब ये खत्म हो और फिर मैं आगे बढ़ूं या मैं देखना शुरू करूं, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस तरह के केसेस में हम यूजर वो यूटिलिटी वाला केस यहाँ पे आ जाता है। और लास्ट आपका लीस्ट प्रायोरिटी पे आपका बैकग्राउंड थ्रेड है, जिसमें व्हाट्सएप का बैकअप वाला एग्जांपल एक ले सकते हो कि बैकअप चल रहा है बैकग्राउंड में, पर फर्क नहीं पड़ता, ना यूजर्स को देख रहा है ना यूजर को फर्क पड़ता है। इस तरह के केसेस में जब आपको पता है कि लंबा टास्क हो सकता है और इसमें यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे केसेस में आप एकदम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो अपने टास्क को या अपनी क्यू को। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा। तो फिर कल मिलते हैं, अभी के लिए हम रैप अप करेंगे, कल हम Q&A और लेंगे और कल हम और रिमेनिंग टॉपिक्स और क्वेश्चन इंटरव्यू के डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो या और आपको हाँ आज मोस्टली ये एक तो टॉपिक्स का एक लिस्ट मिलेगा और आपको कोड स्निपेट्स और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप खुद से आज
ट्राई कर सकते हो, कल हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो या एनीवन, कोई किसी कुछ कहना है? अदरवाइज वी कैन रैप अप। एंड कल का टाइमिंग हम लोग सेम रख सकते हैं, या किसी को कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई एम ओके विद द सेम टाइम। टाइमिंग को लेके एनीवन? जी, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग रख सकते हैं क्या? ये बात कैसे? अर्ली मॉर्निंग आई एम नॉट श्योर, मुझे तो नहीं है सच प्रॉब्लम, बट अराउंड 10, अराउंड 10 अगर थोड़ा सा अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं। 10 पे एक्चुअली मेरा थोड़ा ऑक्यूपाइड है सीन, बट क्योंकि मैं यूएई में हूँ तो मेरा 10 इज लाइक 8:30, ठीक है? मैं आप लोगों से 1.5 घंटे पीछे हूँ, तो या बट हाँ, वी कैन ट्राई फॉर 11, 12, 1 समथिंग। तो ऐसा कुछ करना है तो बताओ, अदरवाइज सेम टाइम पे वी कैन कंटिन्यू। कोई इस पे क्विकली मैं एक पोल ले लेता हूँ क्विकली, तो हमें आइडिया लग जाएगा। पोल का ऑप्शन होता है यहाँ पे? हाँ, होल्ड करना एक बार तो, और मैं एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता हूँ, वहां पे भी वी कैन सिंक व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, मैं आज प्रोजेक्ट की बात नहीं करी है मैंने, तो प्रोजेक्ट पे भी मैं हम लोग या तो मे बी कल या परसों में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम बहुत बेसिक ये जीसीडी वगैरह, बट हम आगे हम लोग सॉफ्टवेयर कंबाइन और इन सब पे आने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें अभी सीख रहे हैं और कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको यूज़ करनी है, ठीक है? तो वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो हाँ, लेट मी जस्ट मैं पोल डाल रहा हूँ। ये दिख रहा है क्या पोल? पोल एक्टिवेट हुआ है क्या? संडे 10 एम डेडली हूँ। हाँ, कल संडे भी है, सो आई होप कि मतलब ऑब्वियसली पीपल प्रेफर नॉट मॉर्निंग, राइट? पोल नहीं दिख रहा है, पता नहीं, पहले तो यार मैं करता था पोल वाली चीज, अभी क्यों? हाँ, ये रहा, इनका खुद का पोल भी है ना, मैं वही देख रहा था। हाँ, मिल गया, जस्ट अ सेकंड। टुमारो सेशन सेम टाइम जो आज का था 2 PM, या फिर मॉर्निंग 11 AM, या फिर आफ्टरनून 12 PM। 3 ऑप्शन रखते हैं हम लोग, ठीक है? एक 1 PM भी रखते हैं, जस्ट सेकंड। सेव एंड लॉन्च। देखो, आपको एक पोल आया होगा, यू कैन जस्ट क्विकली वोट, वी कैन डिसाइड द टाइम। यस गौरव, 1 PM or 2 PM। नॉर्मली वी आर ट्राइंग फॉर, जैसे आज का भी टाइम 2 PM था, राइट? तो सेम थिंग वी कैन डू। हाँ, पोल दिया है, यू गॉट द पोल? यस, सब लोग वोट करेंगे। 11 वोट ही मिले, 24 पीपल है इधर, सो बाकी लोग भी प्लीज अपना वोट प्रदान करें। वोट आपका अपना हक है, सो बाकी लोग 12 पीपल नहीं वोट दिया, 24 पीपल। प्लीज बाकी लोग को वोट दिख रहा है, वोट सेक्शन या चैट में वहां दिख जाएगा, क्विकली यू कैन वोट। जहाँ बहुमत होगी वो फाइनल होगा, तो प्लीज जल्दी, जस्ट लास्ट 1। अच्छा, आप तो लीव पर है, तो बढ़िया है।
ठीक है, बाकी लोग ने वोट नहीं किए, कुछ लोगों ने, बट अभी तक 14 वोट्स मिले जिसमें 7 सेम टाइम पे है, 5:11 AM, 1 वोट फॉर 12 PM एंड 1 फॉर 1 PM। ठीक है, मैं एंड करता हूँ फिर बोल, और कुछ जल्दी से वोट कर सकते हैं। 16 वोट्स आ गए, अभी भी 6-7 लोगों ने वोट नहीं किए, 8 लोगों ने, अराउंड 7-8 पीपल। ठीक है, बट बहुमत दिख रही है सेम टाइम पे, तो वी कैन गो विद द सेम टाइम। 15 वोट्स आ चुके हैं। फी स्ट्रक्चर आनंद, 55,000 rupees is the fee for this entire batch। 2.5 से 3 months का बैच होगा मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि हम सारे टॉपिक्स कवर करें, तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा भी, और हमें प्रोजेक्ट भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी सारे लेने हैं, तो इट विल टेक मतलब काफ़ी अच्छा खासा टाइम। तो या ठीक है, तो पोल वाइज कल का सेशन हम लोग फिर 2 बजे ही रखते हैं, मैं एंड कर रहा हूँ पोल। और रिजल्ट आपको क्या है कह रही, मुझे नहीं पता, बट रिजल्ट देख सकते हो क्या आप लोग? मैंने पोल एंड किया है, तो कल सेम टाइम पे, हाँ 10 वोट आ गए, तो फिर लेट्स गो विद सेम टाइम। कूल, आपको कैलेंडर इन्विटेशन आ जाएगा जी। हाँ, एक क्वेश्चन था, ये मैं एक्चुअली 5 मिनट शायद लेट ज्वाइन किया था, तो स्ट्रक्चर वगैरह मुझे पता नहीं कोर्स का, तो अगर वो बता सकते। मैं शेयर करूंगा आपको करिकुलम, मैं शेयर करूंगा एक डॉक जिसमें टॉपिक्स होंगे, तो वो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, तो आज आप लोगों को मिलेगा वो। और स्विफ्ट यूआई हम कवर करने वाले हैं क्या? क्योंकि मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बेसिक स्टार्ट किया है, तो वो भी पूछना था। हाँ, स्विफ्ट यूआई देखो करने वाले हैं, रिकमेंड आपको ही करूंगा कि स्विफ्ट यूआई आपके एंड से जितना आप कर सकते हो बेटर ही है, फिर हम लोग तो लेंगे ही स्विफ्ट यूआई, तो उस पर हम स्विफ्ट यूआई के फंडामेंटल, स्विफ्ट यूआई के क्वेश्चंस, स्विफ्ट यूआई में कुछ बनाएंगे भी, तो वो सारी चीज होंगी। पर अपने एंड पे आप अपनी खुद की प्रिपरेशन प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, वेल एंड गुड है, जितना करोगे अच्छा ही है। तो मतलब वेट मत करो, स्विफ्ट आने में टाइम है एक्चुअली थोड़ा, पहले ये मल्टी थ्रेडिंग है, फिर और भी कंबाइन वगैरह भी हम पहले लेंगे, तो उसको टाइम है स्विफ्ट यूआई को। पर जब तक स्विफ्ट यहाँ शुरू होगा उसके पहले आप लोग अपना सॉफ्ट यूआई अपने लेवल पे यू कैन डू, देन वी विल टेक। यस, या कूल, तो ऑल ओके देन, कल मिलते हैं फिर 2 बजे सेम टाइम 2 PM। 10 वोट बहुमत मिल चुकी, तो बीजेपी कांग्रेस में काइंड ऑफ बीजेपी हो गए 2 PM, तो ठीक है, चलेगा, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन वीकेंड पे आने के लिए, और कल सेम टाइम पे रखते हैं हम लोग, और मोस्टली हम 3 से 4 सेशन में खत्म करेंगे इसको पूरा, मल्टी थ्रेडिंग, जीसीडी, एनएस ऑपरेशन, असिंक अवेट, एवरीथिंग। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय। Thank you. थैंक यू।